Last year's finalists, Southern Punjab became the first team to make an exit this year. 6 defeats in a row at the start left them on a tough path to qualification. A brief revival gave them some hope before the loss to Sindh ended their chances. He's got it, there it is, there's a hat-trick. But they will be looking to go out on a high against Khyber Pakhtunkhwa today. The defending champions are in top form. The skipper, Iftikhar Ahmed, produced a fine all-round performance as his team outclassed Sindh yesterday. And there is no stopping Sahibzada Farhan, who is now the top scorer in the tournament. Southern Punjab have their work cut out for them. Hello and welcome, and it's down to match 27. ATF Southern Punjab are against Khyber Pakhtunkhwa as the Gaddafi Stadium, Lahore. Points table now, the important session has started in the tournament. You can't afford to lose any more games. If you're in the top 5, ATF Southern Punjab cannot qualify anymore. So we're down to the last 3 or 4 days of the tournament, and we are going to be playing 33 matches, out of which today is the 27th. We just mentioned that ATF Southern Punjab cannot qualify anymore for the semis, but they can play the spoil sport because there are certain teams who've been losing. Certain teams like Central Punjab have lost their last 2 games. Khyber Pakhtunkhwa have picked themselves up after losing 2. They won 1 yesterday. So if you are looking to be in the top 4, you've got to bring your A game. I've got Mike Hazeman alongside me with his A game. So from here, no more excuses. Yeah, look, no, there's not. For Southern, they can relax a bit now, can't they? I mean, you're right, spoil sport, and they can have some fun and just relax and play aggressive cricket, exciting cricket, and just enjoy themselves and entertain, really. KP, they've got to win one of their last 2. They play again tomorrow as well to make sure they qualify. But I wonder if there are various teams thinking about, okay, who do I want to play against? 1 versus 4 and 2 versus 3. Who wants to be positioned where in that top 4? And it's quite interesting to see this game. And I'm interested to see how Southern come out, because if I was them, I'd be firing on all cylinders and just see if I can upset KP. You might be surprised to know that the average first inning scores has increased after the World T20 squad has gone to rest and in their bubble. Because youngsters are out there, or is it because more flamboyant now, taking the chances that they've got? I think it's a bit of both, you know. I mean, the youngsters are looking to grab the opportunity, and once they've grabbed that opportunity and they've been selected, they're out there and playing. There's no doubt these tracks were better. I mean, the track yesterday morning was quite interesting in itself. It gave a little bit to the spinners occasionally, and the seamers just got a little bit extra bounce occasionally. When I went out to do the pitch report in the midway of the day, there were a couple of little divots which indicated the track was a little bit on the soft side. I'm very interested to see what this track is like first thing this morning as well. So I think it's a bit of both. The surface is better, and the kids are having fun, so good luck to them. All right. Marina's out there. Let's have a look at the pitch. It's day 5 here at Gaddafi Stadium, and it's pretty hot as usual. Surprisingly, October is flaunting to be hot. So let's have a look. I'm here with the pitch. It's a brand new strap, but nothing new for the batters. I've been going on and on how the conditions are very suitable for batting, but today I want the bowlers to listen. I'm at the pavilion end, and if you look closely, there are some cracks that are still open but will open late. So I think that from this end, the spinners will get some turn, and there is some live grass as well. So seamers, beware of that. But most importantly, what I want the bowlers to do is to understand this corridor, especially for the power play. This corridor is from probably middle stump to 4th stump. If you pitch in that area on a good length, just imagine a coin put there and hit that length. If you do that, you will get certain wickets early on, and that is the key to just, you know, calm down the batters from playing good open shots. So I want the bowlers to take the charge and use this new Kookaburra to your best ability. Had enough of chasing and winning. I mean, you're the coach of the side who's been asked to bat first. What do you do?
You've got to take a little bit of time, and she's dead right, Marina. This new Kookaburra on that track is probably going to do a couple of things. So if they bowl in the right channel, it's going to ask some questions. So if you're batting first, you just got to take a little bit of time and just assess the bowlers just a little bit. There's not too much time in a T20 game, but as soon as you feel more comfortable, and maybe if you hit a boundary, hit a strong boundary, then you're away. Then you're off, and you can start playing your shots and thoroughly enjoy your shot. The most that you're batting. The most important thing, of course, is when you're playing well. Don't get a 20 or 30 and get out. Make sure it kicks on to a 70 or 80 and make a real difference. All right. Basit is out there with the two captains. Let's flip the coin. Hot afternoon here in Lahore, and we're ready with the toss. Two captains, Amir Yameen, Iftikhar Ahmed, Ali Naqvi, ever vigilant match referee. Amir Yameen has the coin. Head. Heads is the call. Khyber Pakhtunkhwa have won the toss. इफ्तिखार क्या करेंगे और क्यों? बॉलिंग करेंगे। चेस अच्छा हो रहा है इसलिए? नहीं, थोड़ा मॉइस्चर है विकेट में तो उससे फ़ायदा लेंगे। आमिर, आप लोगों का आखिरी मैच, आपकी टीम इस दफ़ा क्लिक नहीं की, मिडिल ऑर्डर से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, शायद वो पूरी नहीं हुई। जी बिल्कुल बाजिद भाई, आपने बिल्कुल सही बात किया। मिडिल ऑर्डर में हमें वैसे परफॉर्मेंस नहीं मिल सकी बैट्समैनों से। बाकी यही है कि इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। हमने कुछ दलावरा की अच्छी क्रिकेट खेली है, बाकी कोशिश करेंगे कि अच्छा फिनिश करें। सर ये बताएं, पिछले मैच में आपने अपने आप को यूज़ किया, स्पिन को बड़ा अच्छा यूज़ किया, तो आपको लगता है कि लाहौर में स्पिन का ज़्यादा रोल है? जी बिल्कुल। मैंने खुद अपने मतलब स्पिन पे बड़ा काम किया हुआ है, और ऐसे विकेट है कि यहाँ पे थोड़ा स्पिन को हेल्प मिल रही है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि बॉलिंग करूँ। दूसरा सवाल आमिर ये है कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप भी इतनी अच्छी नहीं चली। पिछले सीज़न में ज़ीशान अशरफ का बहुत बड़ा रोल था, उनका शायद आउट ऑफ फॉर्म होना आपकी टीम को परेशानी का बायस बना। जी बिल्कुल बाजिद भाई, ज़ीशान जैसा प्लेयर है, सबको पता है। बाकी है कि वो उससे बेचारे से नहीं हुआ, बाकी इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। बात यही है कि बाकी हो जाता है गेम में, बाकी वो पॉजिटिव है इंशाल्लाह। बस कोशिश यही है कि अपना अच्छा करें और टूर्नामेंट का जो एंड है वो अच्छा करें। आपको मैच जीतेंगे तो फ़ायदा होगा, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। अपने हाथ में चीज़ें रखने की कोशिश करेंगे। ये बताएं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए आज के दिन की खैबर पख्तूनख्वा की? हम तो चाहते हैं कि पोल में टॉप पे रहे, क्योंकि जितने भी हमारे प्लेयर, हमारे जूनियर भी आ रहे हैं, तो माशाल्लाह वो टॉपर है, टॉप के प्लेयर है, टॉप परफॉर्मेंस किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो इंशाल्लाह हम टॉप पे फिनिश करेंगे। आपकी टीम में कोई चेंजेस? हाँ जी, 3 चेंजेस है। नबी गुल खेल रहा है, मास खान खेल रहा है, कामरान गुलाम खेल रहा है। मुसद्दिक नहीं है, आदिल अमीन, ये दोनों, और तीसरा पता नहीं। हमें आपकी टीम में कोई जी चेंजेस? बिल्कुल, हमारी टीम में 4 चेंज हैं। उमर खान, इलियास, शरून और यूसुफ बाबर खेल रहे हैं। Thank you very much. So the news out here from the center is that Khyber Pakhtunkhwa have won the toss and have elected to bowl. So KP has won the toss. They're fielding first, and this is what their side looks like. Khyber Pakhtunkhwa has more at stake in this game. Kamran Ghulam, the highest scorer in the 4-day format from last year, has been included. Nabi Gul is new, Maaz Khan is new, and there are 4 changes for Southern Punjab as well. Yeah, good odds on the Punjab for making those changes. They hadn't had a good campaign, and I think we all know that, but obviously they're quite keen to get some other guys in and have a look at a couple of young boys and see how they go. So good on. It's good to see some changes and get these young blood, get the young blood firing. Khyber Pakhtunkhwa captain says, want to finish on top of that, you'll have to win the game first. So, more at stake for KP in this particular match. What kind of score you think is going to be defendable here? I'm not going to answer that just yet, because I think this couldn't be a better situation for KP. They've won the toss, they're bowling first because he thinks there's going to be a little bit in this track first up with a new ball, and I think he's going to be dead right. And of course, what have we got? 7 of the 8 games so far been won chasing, so it's a perfect scenario for KP. Yeah, listen, I think KP are going to win this because of the toss. I think it's we often sit here, or stand here, I should say, in a T20 game and say, okay, chase, and it's all because of batting batting last. But in this situation, he's taking advantage of the pitch first up. So it's a good decision, and I think it's going to prove dividends. Any score on your mind? No, just a win for KP. All right, thank you so much. All right, here we are. So match 27 is all set and ready. We've got KP versus ATF Southern Punjab, and if KP wins, they qualify.
Hello everybody and thanks for joining us. Match number 27 it is. Southern Punjab versus Khyber Pakhtunkhwa. And it is going to be an interesting game, this one. Southern Punjab can play a spoil sport, of course. And KP just need to win one of their last 2 games to qualify. Baz alongside me. Baz, quick look at the changes. Yeah, plenty of changes that you'd expect because of the last game. 3 for Khyber Pakhtunkhwa, Kamran Ghulam Nabi Gulmaz Khan come in. And then you've got 1, 2, 3, 4 for ATF Southern Punjab. Opportunity for the players who hadn't made the side before. Tayyib Tahir opening the innings, strikes the ball well, he's a power player. He's been threatening this tournament, but hasn't really got that big score as yet. So the big advantage, by the way, with the toss, in my view, Siraj, 24 years of age, right-handed batsman, is his partner today. KP won the toss, and they elected to bowl first. The reason for that is I think there's a bit in the surface. I tend to agree with them. There certainly was yesterday morning, or yesterday afternoon, I should say, the first game. And I think it's going to be the same again today. And Imran Khan Sr. is likely to get anything that is there. Here we go. First ball. Bit of swing for starters. Iftikhar at the toss mentioned that there might be a bit of moisture maybe, and maybe something in it for the bowlers. My caseman agrees that there'll be a bit of help, bit of support for the new ball bowlers. I think that's the important part too, Baz. It won't be for long. It's when this white kookaburra is nice and shiny and that seam is proud. A little movement through the air, and perhaps off the seam the odd one might just bounce a little bit more than the batsman anticipates. There's that swing. And often in a T20 match, it's all about chasing. 7 of the 8 games we've had so far have been won in Lahore, that is, won by the teams that have been chasing. But it's quite refreshing to see a captain have a good look at the pitch and make his decision based only on the surface. It's a warm one again, somewhere around about the mid-30s. That's nicely whipped away on the leg side. So they're away, Southern Punjab. To preserve moisture in that pitch, you need to be really good as a groundsperson. Because of the fact it's so warm, the sun is beating down, they keep it covered for as long as possible to retain some kind of moisture and to retain that strength in the pitch, keep it, bind it. Looks like there's a few more cracks there as well. So that's bowling towards the pavilion end. Bowling the end that Imran Khan Sr. is bowling into now. There we go. Perhaps a little bit of movement, a little bit of extra bounce. And what Imran Khan Sr. does so well throughout his career, he's done this really well. He makes that new ball count, as in he'll bowl it in those areas where he'll challenge the batsman. I know it's T20 cricket, I know it's all about defending, but with the new ball, Imran Khan will be so consistent outside that off stump that if you want to get a run or you want to attack him, you have to take a big risk. Looking to go downtown. Big swing past the outside edge and a little bit of a glare as well to Sharoon.
Yeah, the seam position is immaculate. And late outswing. That's a beautiful delivery. You'll have to be in top form to be able to hit that. You're advised to hit it through the covers rather than try and hit it straight, because you're going against the angle with the ball swinging away. So maybe aim to hit it past cover rather than straight down the ground. A little bit straighter, eased away on the leg side, and that's going to annoy Imran Khan. So 5 off the over after 5 very good deliveries first up. First down. Right, 1 over gone. 5 for no loss at the moment. I reckon Imran Khan Senior still kicking himself. He's just walking around in circles at the moment, just getting his breath back. The warm conditions, but no doubt also a bit annoyed of himself. This is the advancing down the wicket from Sharoon. And the very next ball just slid leg side, and Sharoon had the last laugh, I suppose. Now there's a bit of extra bounce. First delivery from Iqbal. Now he's quite a tall character, so if there is going to be any bounce out there, he's likely to extract it. And just a little bit of movement off the seam. He's a hit the deck kind of bowler. He'll smash the ball into the deck. He'll not go searching for swing too often. Just bowl back of a length. Cries of catch it on the bounce down a third man. Yeah, back of a length again, short. Bit of bounce. Tayyib Tahir will throw his bat at it, and he did that, exactly that. Went for the cut shot, top edge. And for a moment, Harshad Iqbal thought he'd got that first wicket. Justin Carey on the bounce. I don't know how many viewers remember a guy called Tertius Bosch, who played in the '92 World Cup for South Africa. This guy looks like Tertius Bosch, and his run-up is almost identical. It's exactly the same as Tertius Bosch, right there. Tertius Bosch used to be seriously quick on his day. He was a dentist, Tertius. Fast bowler, dentist, I think it's the ideal combination. Bowler, bouncer, and then get some clients. There was a fast bowler in the Caribbean. His name escapes me right now, but his nickname was the dentist for those reasons. There's another slash. Again, some good carry to the keeper. There's been a bit of playing and missing so far. As the ball lands on the seam on the surface, sort of zips away. An extra bounce, carry to the keeper. So far, this shiny white new ball, Kookaburra ball, playing its part. Yeah, so it's a challenge now. Really is a bit of a challenge for Southern Punjab. They haven't been scoring runs consistently in the power play. Got that away nicely though. Not too much of a flourish. That's where the value is in that shot. Lovely shot. Really in control.
Not trying to hit the ball too hard, just relying on timing. Balance good. Head position perfect. And placement. That's the way you got to play against a new ball, which is getting bounced and coming onto the bat. You don't really want to smash it and lose your balance. If you can time it, that's the way to go. So 6 off this over, still 1 ball to come. There's the last one. They want to keep it nice and tight, and they do, so that's fine for Iqbal for his first. 2 gone, 11 for none. I'm looking for the run makers. Azam Khan, 1100. Salmons, 707. Just a bit of background on Shahrun Siraj. He got a 55 not out of 27 balls, playing for second 11 versus Central Punjab second 11, so he's drafted into this side. They've given opportunities to younger players. Yusuf Babar also coming into this game. Obviously, ATF Southern Punjab out of the semi-final race, so it makes sense to give the younger players or the newcomers a taste of top-class cricket. Yeah, I couldn't agree more. When they're out there, they've got to be a little circumspect when they first arrive. Make sure they make the most of the opportunity. There's been far too much playing and missing for my liking. Yeah, that was a good ball. That wasn't a great shot. Bit of a flash. They're not balls to play those sort of shots to. I think they all know that, though. There are ways to be nice and positive, ways to be nice and aggressive. Ways to drink your tea as well. What a nice little Tapal tea moment that is. Down the ground, hard, and 1 bounce, and it's gone for 4. Tried this the previous over, and the ball swung away, and he was beaten and didn't look pretty. But this time around, maybe just pace off. The ball not swinging, so in his arc. Yeah, just sort of seemed back in rather than going the other way, and he smashed it down the ground. Yeah, that'll make him feel better, that's for sure. Follow up from the nasty quick. And for Khyber Pakhtunkhwa, if they win today, they're guaranteed a semi-final spot. And they'll want to confirm that semi-final spot right now, right today. And they don't want to leave it too late. Yeah, they've got to front up again tomorrow, so it's easier if you do it this time. And then maybe 1 or 2 players get a bit of a breather tomorrow, depending on what they think about the spots to end up in, who wants to play versus each other, 1 versus 4 and 2 versus 3. And might be some people at home thinking that sort of stuff doesn't happen, but believe me, there's discussions around that sort of business. Have a go at if you're in top of the table, you want to have a go at the weaker team. So at the moment, it's Northern at the top with their 12 points, and they have qualified. And KP will join them today, and they win again tomorrow. They'll go to 14.
Balochistan still in the hunt, so if they win a couple of games, they get to 10. So it is unlikely, but possible. Yeah, they've got to rely on things going their way after losing that game yesterday, the late game. That's why they were so annoyed at the end. That's why the skipper just stormed off and ripped off his blue plaster from his fingers. Took him about 10 minutes to get them all off. That's away. Nicely played. It's a good way to finish the over. Second boundary off the last ball from Imran Khan. 3 gone, 19 for none. Now, just to remind you to remember to create an account at shop.pcb.com.pk and order a shirt through the official PCB merchandise store now. Get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 21 shirt signed by the Pakistan squad. Deadline is the 15th of October, and 5 lucky winners will be announced through the PCB official portals following the campaign end. 10th today. Clock's ticking. Hashtag wear your passion. Asif Afridi has been vital in this Khyber Pakhtunkhwa bowling lineup. Yep, the black shoes, the school shoes during the day, and the white shoes at night, the dancing shoes at night. That's what he wears. A lost ball down leg side. This one short. But it's a poor delivery. Oh, that's nicely played. That's going to go for 4. That's a very good shot indeed. High class shot this. Rocked onto the back foot, and with a straight bat he sort of played it wide off long on. This is a top quality shot. The skill in this shot is very, very high. It's a very difficult shot to play and to get so much power behind it. Yeah, against the best spinner in the tournament as well. Afridi's been really good. Let's have a look how deep he goes, and good transfer of the weight onto that back foot. Nicely played. Really good shot for 4. Second ball of the over. And importantly, second ball the spell as well. I'll be interested to see those fingers now be nice and warm with this temperature as well, and he's had 4 balls. So I'll be interested to see if Afridi does get a little bit of turn out of the surface. He's not someone who gives the ball a big rip, bit of a roller more than anything. But he might get a couple to straighten, which will give us a nice indication of the track. Anyway, that one just straight into fraction. Throughout the tournament, he's been going at just bang on 6. That is seriously good bowling. Now the non-striker has dropped his glove. And it's quite... I find it quite bizarre when the non-striker doesn't wear his gloves and holds the gloves. Oh, he's having his problems. That's going to be great for the striker. Corner eye, so you might drop your gloves again. And it definitely hampers you running between the wickets. I don't understand it anyway. 4 gone, 26 without loss. आज कुछ नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है सदर्न पंजाब ने। इसमें हम देख सकते हैं यूसुफ बाबर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, और शारून शिराज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तैयब ताहिर के साथ मौजूद हैं। यहाँ इनके
जो ग्लव्स हैं वो ये गिर गए थे पिच पर। ये देखिए इस तरह गर्मी में कई बार बैट्समैन ग्लव्स उतार देते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे आकर, लेकिन स्ट्राइकर जो है वो कभी भी पसंद नहीं करता इस बात को कि आपके साथी ने ग्लव्स उतारे हुए हों, उसे भागने में दिक्कत होती है। अच्छा फ्लिक शॉट खेला, इस बार फिर महारत से खेलने में कामयाब हुए और प्लेसमेंट भी उम्दा थी। 4 रन मिल गए तैयब ताहिर को। बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं तैयब ताहिर, और ये अच्छी शॉट ऑफ द पैड्स उन्होंने लगाई 4 रन के लिए। काम कलेक्टेड, गैप का पता था और 4 रन हासिल किए। यहाँ पर इफ्तिखार अहमद को सोचना होगा कि तैयब ताहिर को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव कराया जाए, उसी से फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर इनको लेंथ मिलती रहेगी ख़ास स्टंप्स की लाइन में ही, तो इनके रन्स रुकेंगे नहीं। इनके जो पार्टनर हैं सिराज तैयब ताहिर के, उन्होंने आज पहले ही बड़ी ज़बरदस्त लेंथ जो है उससे फारिग कर दिया बॉलर्स को आगे आके। ये एलसीसी ग्राउंड है, गद्दाफी स्टेडियम से मुत्तसिल, और उससे आगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। वहीं पर बॉब वुलमर इंडोर स्कूल है, यहाँ पर इंडोर ट्रेनिंग करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। ये वाइड करार दी जाएगी, बहुत बाहर थी, लेग स्टंप के बाहर खासी गहमा गहमी रहती है। ये इलाका जो है खेल की सरगर्मियों का शहर में सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक ज़माने में मिंटो पार्क में खेलों के मुकाबले होते थे। लाहौर में वो गढ़ था खेल का, न सिर्फ क्रिकेट का बल्कि कबड्डी और कुश्तियों का बड़े बड़े अखाड़े होते थे वहाँ अतीक स्टेडियम में। और वाइड तारिक में बात करी थी कि जब पहला ओवर था और बैट कर रहे थे सिराज, तो इमरान खान की एक बॉल पर वो नीचे आए थे, और उसकी वजह ये थी कि वो इमरान खान की लेंथ जो है उसको ख़राब करना चाहते थे, और अगली बॉल पे ही डाउन द विकेट उन्होंने लाइन भी हुई और लेंथ भी ख़राब हुई, जिस पर उन्होंने 4 रन हासिल किए। यंग बैट्समैन है लेकिन बड़ा अच्छा इंटेंट दिखाया, सोच समझ दिखाई कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो बॉलर घबरा जाएगा और उसकी लेंथ और लाइन दोनों ख़राब होंगी। तो ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। ओह अच्छा शॉट खेला, 4 रन। आउटफील्ड निस्बतन सुस्त है लेकिन इतनी नहीं कि गेंद बाउंड्री तक पहुंचने से रुके। एक बार फिर ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर जाकर बड़ी खूबसूरती के साथ खेला शाहरुन ने। अच्छी शॉट, अपनी टोज पे गए, वेट किया और 4 रन हासिल किए कवर रीजन में। मज़ा आ रहा है यंग बैट्समैन को देख के। तारिक, तैयब हो, फरहान हो, सिराज हो, सलमान आगा हो, हुसैन तलत, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी इंटेंट से बैट करें, एग्रेसिव बैटिंग करें। ये बेहतर लेंथ है कि आप बैट्समैन को सामने लाएं। अभी भी गेंद नहीं है, चमक है इस पर, तो पिच से भी मदद है। अगर आप सही जगह को हिट करते हैं तो वहाँ पर मदद मौजूद है। लेकिन ये जो 12 में से ज़्यादातर रन्स जिस ओवर में दिए हैं नियाज ने, ये बैकफुट पर खिलाने की वजह से हुआ है। और मरीना ने अपनी पिच रिपोर्ट में भी कहा था कि आगे बॉल करें, स्टंप टू स्टंप बॉल करें, तो उसका अगर बॉलर्स ने ये सुना हो तो अच्छी लेंथ पे बॉल करेंगे, फुलर लेंथ पे और स्टंप टू स्टंप, तो ये फ़ायदा होगा उनको। ड्राइव जैसे आपने कहा कराने की कोशिश करें। यहाँ एक बार फिर अच्छी लेंथ थी, दबाव में लिया कवर के फील्डर को और रन हासिल कर लिया। तो जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान टीम के कैंप में जो गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, एक फ़ायदा हुआ है कि नौजवानों को यहाँ पर मौका मिला है। ये एक और नौजवान खिलाड़ी अच्छे फील्डर हैं
आमिर, लेकिन इस बार गेंद हासिल नहीं कर सके। कल खुर्रम मंजूर को इन्होंने रन आउट किया था। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को चांस मिला है जब से वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो बबल में चला गया। ये भी यंग बॉलर हैं, नियाज। और उठता शॉट खेला, गेंद सीधी गई आमिर अजमत के पास। तेज शॉट था, लेकिन उनने अपने दाएं जानिब हाथ आगे बढ़ाते हुए इस गेंद को कलेक्ट किया। शारून की इनिंग्स का खात्मा। जी हाँ, ड्राइव कराया उनको और आगे निकल के ड्राइव किया और सीधे आउट हो गए कवर पे। अच्छा कैच और बॉलर बहुत खुश, जैसा कि होना चाहिए। 13 रन इस ओवर में बने और शारून सिराज की विकेट मिली नियाज खान को 39 पर 1। पहला नुकसान उठाना पड़ा है 39 के मजमूए पर सदर्न पंजाब को। सलमान अली आगा को मैदान में उतारा गया है, जो कि दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और ये मेहमान खिलाड़ी हैं सदर्न पंजाब के खेमे में। लाहौर से इनका ताल्लुक है। 53 मैचेस में काफ़ी रन इन्होंने बनाए हुए हैं सलमान अली आगा ने। अरशद इकबाल दूसरी जानिब तैयार हो रहे हैं। पवेलियन एंड से आप बॉलिंग करेंगे। और सलमान ने भी अच्छी इनिंग्स खेली एक बहुत ही उस दिन, और 150 से ऊपर रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। ग्लिम्पसेस दिखाए अपने टैलेंट के, लेकिन ज़रूरत है कि एक दो और अच्छी इनिंग्स खेलें। हाँ, ये वो विकेट इम्प्रेस करें। पिछले ओवर में एक चौका लगाया था निकल कर, और इस ओवर में जब 2 बाउंड्रीज ऑलरेडी मिल चुकी थी तो इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं मोल लेना चाहिए था। ख़ासतौर पर लंबे बॉलर के खिलाफ जब नई गेंद पर बाहर निकलना हो तो हमेशा ख़तरा रहता है ऊंचे शॉट खेलते हुए। जी हाँ, जितनी इस तरह की क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे ये समझदारी आती जाएगी इनमें। ऐसा ऐसा जैसे आप क्रिकेट खेलते जाते हैं, यंग होते हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें समझ आती रहती हैं। कंसिस्टेंसी की आपको कितनी ज़रूरत है। अगर 2 चौके हासिल कर लिए तो सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर पे चले जाएं। ये सारी बातें एक्सपोजर के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलने, इस लेवल की क्रिकेट खेलने से आपको समझ आती जाती हैं और बेहतर प्लेयर आप बनते जाते हैं। ये शाहिद अनवर जो हेड कोच हैं, पिछले बरस सेंट्रल पंजाब से वाबस्ता थे। टीम कायदे आज़म ट्रॉफी में चैंपियन हुई थी। देखिए, क्रिकेट में जो है एक के बाद दूसरी गेंद पे ही हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। आमिर अजमत ने यहाँ पर गलती की, ये रन कंसीड हुआ, मुख्तलिफ बैट्समैन सामने गए और ज़्यादा मुश्किल काम इन्होंने आसानी के साथ कर दिखाया। ये अच्छा कैच लिया उछल कर अपने दाएं जानिब। यही इस खेल की खूबसूरती भी है। अच्छी शॉर्ट बॉल थी ये। जस्ट अ मैन, स्कैन कीजिए इस QR कोड को और इनामात पाइए।
ये एक बार फिर निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मनाजिर हैं और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप देख सकते हैं नेट पर इस वक्त एक्टिविटी है। यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं जो आमतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हों। और खेल दिया पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए कदमों का इस्तेमाल किया अरशद इकबाल के खिलाफ, जो ज़्यादा तेज़ बॉलर नहीं है। सलमान अली आगा ने अपना पहला चौका लगाया। जी हाँ, कहते हैं अगर फ्लैश करना है तो फ्लैश हार्ड। नीचे आए और फ्लैश किया और गली और पॉइंट के बीच में से 4 रन हासिल किए। एक दफ़ा फिर इंटेंट शो किया, अपिश शॉट खेली और बेहतरीन रिजल्ट इनके लिए। आज सदर्न पंजाब के बैट्समैन दबाव से आज़ाद होकर खेल रहे हैं। इस बार रन का मौका नहीं दिया, वहां पर फरहान थे। तो इस ओवर में 7 रन बने, 1 विकेट पर 46। तैयब ताहिर 21 पर हैं, 5 रन बनाए हैं आगा ने। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हॉस्टल के पीछे ये वो आप देख सकते हैं सब्जादार, जहां पर सरगर्मी रहती है। आमतौर पर ऑफ सीजन में यहां पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की खामियों पे काम किया जाता है। बैटिंग और बॉलिंग कोचेस यहाँ खास से मसरूफ़ रहते हैं। इन दिनों यहाँ मोहम्मद यूसुफ हैं, नदीम खान डायरेक्टर हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, और ग्रांट ब्रैडबर्न न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, वो भी मौजूद हैं। तारिक, आपको लाहौर का चप्पा चप्पा पता है, आपके साथ बैठ के अब हमें भी पता लग गया है। Good start, boy. मास खान जो लेग स्पिनर हैं, आज उनको पहली बार यहाँ मौका मिला है। ये खेले थे लाहौर कलंदर्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में। Good bowling. और देखेंगे कि इनको टर्न मिलता है या नहीं। फ्लाइट तो अच्छी देते हैं और अच्छा ऊपर थोड़ा सा अपिश खिलाया तैयब को इन्होंने, पर मज़ा आता है जब बॉल को टर्न मिले, स्पिनर को टर्न मिले, वही मज़ा आता है। फास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छे लगे हैं तैयब, जो हैं बैकफुट पर खास से कंफर्टेबल रहते हैं और इनको आप इतनी आसानी के साथ खामोश नहीं रख सकते। लेकिन ये जो स्पिनर का चैलेंज है, इससे ये किस तरह से निपटते हैं, क्योंकि हमने देखा लाहौर के जो बैट्समैन हैं, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बैट्समैन, ये जो हैं ये इन दिनों स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेलते नहीं हैं। लेकिन ये अभी तक जो 4 बॉलें हैं उसमें अप एंड डाउन टाइप स्पिनर ही लगे, कोई ख़ास टर्न नज़र नहीं आया। थोड़ी सी फ्लाइट देते हैं जो अच्छी बात है। तो चैलेंज बनता है जब लेग स्पिनर एक तो बाहर बॉल को निकाल रहा हो, या तो फिर गूगली अच्छी करता हो, या फ्लिपर भी हो उसके पास। तो ये थोड़े 1-2 ओवर देख के पता लगेगा कि ये कितना बड़ा चैलेंज है इनकी बॉलिंग। कट शॉट खेला खूबसूरती के साथ 4 रन के लिए। थोड़ी सी विड्थ थी, वक्त और जगह का हमेशा फायदा उठाते हैं तैयब ताहिर। 50 रन मुकम्मल हो गए सदर्न पंजाब के। शॉर्ट डिलीवरी थी, उस पे पूरी तरह ऊपर चढ़ के 4 रन हासिल किए बैकवर्ड पॉइंट पे। लेंथ अभी तक इनकी कोई सही नहीं हुई। एक बार फिर तैयब के जोन में गेंद थी, लेकिन इस बार प्लेसमेंट हुई नहीं। 7 के बाद 52 पर है।
ये और नियाज खान का महंगा ओवर था जिसमें विकेट भी गिरी, साथ साथ 13 रन भी बने थे। आसिफ आफरीदी बॉलिंग करने के लिए आए हैं, तो ये चर्चा रहा है यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, और बताया गया कि वहाँ पर पाकिस्तान की टीम इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें, कुछ ही दिनों में जाना है, जेल करें आपस में। ये मंजिर है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, जहां पर तारिक ने आपको बताया कि टीम इस वक्त प्रैक्टिस करी है वर्ल्ड कप का स्क्वाड। बाबर आजम पहली मर्तबा आईसीसी के किसी इवेंट में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे, और सकलैन मुश्ताक जो हैं ये इनको आर्जी तौर पर हेड कोच की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जी, हम तो अब उनको बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं, क्योंकि टीम जाने वाली है, और कप्तान को और सारे टीम मेंबर्स को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छी रनिंग भी कर रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टनरशिप अब आगे बढ़ने लगी है, और तैयब ताहिर की खूबी ये है कि न सिर्फ ये अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं, शायद आपको इनकी जसामत से लगेगा कि ये इतने एथलीट नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं और बड़े कमाल के फील्डर भी हैं। ये लाहौर में बहुत दूर से बाउंड्री से डायरेक्ट हिट करने के लिए शोहरत रखते हैं। और मेरे लिए तो स्ट्रोक ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्होंने ही खेला, तैयब ने। 2 दिन पहले जो इन्होंने वो हाई एल्बो वाला फुल फेस ऑफ द बैट के साथ 6 रन हासिल किए, वो इतना बेहतरीन स्ट्रोक था कि स्ट्रोक ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा आसिफ आफरीदी की जानिब से, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने आगा और तैयब को। 8 के बाद 56 पर 1। चलो 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 जल्दी जल्दी कंट्रोल करना है, एक ओवर शाबाश। आजा ये वो दरुजी मन ने रूनी समझना रेव के कहां हो मख के शाता ना انت बाल बनी मजा बाल ताले जल्दी मखरावाड़ो। Down the ground, goes downtown and goes big and long and maximum. We all know how big he can go. Just a step down and all the way it goes. Tayyab is taking spinners apart. But look at that, good hands, good wrist. That's the strength of Tayyab Tahir. Pakistan team in the National High Performance Centre going through the routine. Yeah, the leg spinner, a decent first over, his second over, first ball taken downtown. Maybe the time to apply some pressure. Agha Salman, he's got to 8 of 9 deliveries. Time to just up the ante slightly. Like that. Doesn't pierce the offside, but the intent now is obviously to turn it on. Saw him coming and he's pushed it flat and wide. He'll be using his feet and his reach to go big again.
This time Maz has to be just wise about it. Don't give any room. Short ball, he missed out. Maybe just down leg, it was very, very short. Salman Ali Agha thinks that the ball skidded low, but the opportunity for that pull shot was the attempted flipper, beating for pace. Goes wide, ends the over well. 9 done, it's 63 for 1. Pace versus spin. Venues Rawalpindi and Lahore. Lahore, both spinners and fast bowlers, almost going at the same economy. Marina has been having a very close look on these pitches. I think she should explain more. It's very little to offer to bowlers. You have to be very immaculate about your line and length. Initially, there is some support, but smashed away. She's slightly short. Agha Salman was always giving himself room outside leg stump so that he could hit it past point. He knows where his areas are, just giving slight room and freeing his arms. Asif Afridi usually very spot on with his length and lines, but this time Agha was on top of it. Giving himself room to open that offside up, and once it was short, it was in his zone. Oh, lovely. The little ramp, and he's got enough on it. Innovation at its best. Cheeky, very cheeky Tayyab this time. He knew Asif Afridi will pitch it up. He was ready for that. He's a smart act, isn't he? Lovely hands. Got to like this intent. A little ram shot, got down so low to it. 11 of this over, and suddenly there's a change, a shift in gears. And it's good that it's starting early before the 10th over. Half the innings done, it's 74 for 1. Preparations, World Cup around the corner. Biosecure bubble. And players now training. Whereas about, what, 200 meters across the road, just across the road, where National T20 carrying on. Still a few days to go. 2 more double headers after today, and then the big final. It's been a long tournament, but it's
And very exciting. Okay. Short ball, pull leg side, too short. Gets the gap, no. That's fantastic fielding. It was there to be hit, but good fielding at the deep. At this length and this pace will never help. If you want to pitch it up with some pace, there's the stop, certain boundary saved. Call for two, and they will make it. He waited the shot into the leg side, and straight away the intent was two. The keeper had to run a long, long way. But once you wait the shot precisely that it just goes towards that 30-meter mark, but doesn't cross that 30-meter mark, then you're in with a chance. Because that's right in the gap between the bowler, the keeper, and the boundary rider. Short ball smashed away. Tayyib Tahir doing this well. Not learning, Mars. It's not the length you want to bowl. Dropped shot, wide and punished. Spinner shouldn't be afraid to just toss it up. You've got protection down the ground. This pace and this length not working. Tayyib Tahir gets to his 50. 35 deliveries, 6 fours and a 6. He's been exceptional. Good intention, good approach towards this is batting. Some exquisite shots, some cheeky ones as well. Well, I am liking this man. He loves to bat, and you can see that when he's out in the middle. Quick down the leg side, that'll race away. That might be just, yeah, it's wides. So 5 runs added. Expensive over this. Mars just all over the ground. Not learning, not picking the right area. Nothing's helping. And the single brings up a very impressive 50 partnership just off 36 deliveries. And this is making sure that ATF Southern Punjab get to that 180, get to that 190, keep in the game. Down on one knee, celebrates his 50 with yet another boundary. 4 runs to end the over. It's 93 for 1. (19 of the 11th). The kickstart the innings needed. And we've seen it's a chasing round throughout this national T20. But if you can get up to 200 with shots like those, you're in with a chance. Tayyib Tahir has been exceptional today. He's got to his 50 now, just needs to carry on. Well, needs to carry on and start hitting everything to the fence. Iftikhar just feeling a bit of pressure. He needs to talk to him. He's got loads of experience. Asif Afridi is very immaculate in his line and length. Just go to the youngster. Osaka, question of the day: which Pakistan player has the most number of centuries in Test cricket? Answer this question on www.fb.com/osaka.batteries. Niaz Khan
from the other end now. Couple of runs. So intention very clear. Even Salman Ali Agha wants boundaries, wants to make sure that this little intensity that they've built, that carries on throughout these last 8.5 overs. Never easy to bowl to such a pair because they both have their own strong zones. Well settled in with a good healthy run rate. We've seen this a couple of times as well. Last night as well, it was left armour though. He had third man in the circle. Junaid Khan went to the boundary very first delivery. Now, for Niaz Khan, it's very difficult with fine leg and third man in the circle. So you've got no protection behind the wicket. So you have to be extremely accurate in terms of being straight at the stumps. And also you cannot give the batsman any sort of pace to work with. Short ball, big appeal, and he's got him. Followed the batsman with that short ball, the angle coming back in, and a big wicket. Intelligent bowling, that's the way to go about it. He knew that there was very little margin of error. Yeah, never got the time to get away of that line, and there's the celebration. Finally, some relief for KP. The partnership of 53 is broken. Agha Salman gone for 16, Southern Punjab 95, 2 down. Azam Khan, 95 for 2. Middle order of ATF Southern Punjab hasn't been able to live up to their reputation. This guy has a reputation of striking big. Strike rate 144. Be slightly disappointed, obviously being dropped from the World Cup squad, but what he can do is smash the ball all around the park. Well, this was a good delivery. Short ball, falling Agha Salman, ball coming back in with the angle. He had nowhere to go. He tried to guide it to third man and ended up hitting his glove. And the direction line was excellent with that bouncer. And starts off with a short ball. He's testing them now, isn't he? Azam Khan, we all know he can go big. It's a perfect platform for Azam Khan. Yeah, did well to get his bat low. Just getting out of the line, that's the best thing you can do. He would have gone through a number of emotions in these past few days. And this one, he's thumped it away. Short ball, and it's carried all the way. Weight behind the shot. 100 up for Southern Punjab. Wow, goodness me. Talk about taking off, and that's one way to go about it. Off the hips. Good fast hands. Just helped it on its way over the boundary. And with everything that's been done now, I think maybe
He can actually just play freely and enjoy himself, Azam Khan. You can take that route. He's got nothing to lose. Last game of this national T20. So if he does that, we're in for a treat. He started off well. He smashed one right out of the ground and whipped it off his hip. This time times it through the offside. Superb timing. He's off and running. A 6 and a 4, 105 for 2. एक 105 पे 2, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया, जिसमें तैयब ताहिर एक बार फिर अपनी निफ्ट सेंचुरी बनाने में कामयाब। आजम खान ने आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया, एक चौका और एक छक्का लगा दिया 3 गेंदों का जो सामना किया उन्होंने, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हुए सदर्न पंजाब अपने आखिरी मैच में आज बड़ा स्कोर और उसकी तलाश। ये देखिए, ये कहते हैं कि जो पहला इंप्रेशन होता है वही आपका आखिरी इंप्रेशन होता है। यहाँ पर जो पहला इंप्रेशन आजम खान ने दिया है वो बहुत ही अच्छा। स्क्वायर के पीछे दोनों तरफ चौके लगाए और इस बार स्क्वायर के सामने छक्का। तैयब ताहिर थे बैट्समैन, खूबसूरत तरीके से उन्होंने हिट लगाई बैकफुट पर जाते हुए और फिर अपनी ताकत दिखाई। एक अपना दूसरे साथी को देखकर रंग पकड़ता है। इन्होंने भी कहा कि क्यों ना अब हम धावा बोल दें ऑपोजिशन पर और क्यों ना इनके पीछे पड़ जाएं। आज कामरान गुलाम को बारी मिली है। ये रेगुलर स्पिनर नहीं है, इनके पार्ट टाइम है, प्योरली बैट्समैन है, लेकिन इन्होंने आते ही उनका इस्तकबाल किया। तैयब ताहिर को अब तक हमने बिल्कुल भी स्लॉप करते हुए नहीं देखा। ये भी अच्छा शॉट था, बैकफुट पर गए और ये देखिए जमीन आसमान के गुलाबे मिला दिए। तैयब ताहिर की जो खास बात आज नोटिस की गई है वो ये है कि आसिफ आफरीदी के अगेंस्ट भी क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। डीप गए क्रीज में ताकि लेंस को अपने हिसाब से बना सकें और इसमें कामयाब रहे हैं। बैकफुट पे चौके लगाए हैं आसिफ आफरीदी को, टोटल अभी तक 7 चौके लगा चुके हैं और इसी तरह से अब कामरान गुलाम को भी डील कर रहे हैं। फिलहाल आजम स्ट्राइक पर, कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ बाज गेंदें यहाँ रुक के आती हैं इस गद्दाफी स्टेडियम की पिच पर, इससे आपको खबरदार रहना होता है। लेकिन अच्छी बैटिंग की है आज, दबाव से भी ये आज़ाद होकर खेल रहे हैं क्योंकि टीम बाहर हो चुकी है सेमीफाइनल की दौड़ से। सदर्न पंजाब के कई सीनियर बैट्समैन नहीं है। ये वो टीम थी जिसमें 3 ऐसे खिलाड़ी थे, सुहेब मकसूद, उनके अलावा खुशदिल शाह और आजम खान, जो कि पाकिस्तान की जो पहले वर्ल्ड कप के लिए टीम मुंतखब की गई उसका हिस्सा थे। लेकिन फिर तीनों जो हैं वो हतमी टीम में नहीं आ सके। तो क्या इससे भी जो ड्रेसिंग रूम है उसके मोराल पे असर हुआ होगा? बात करेंगे इस पर अगले ओवर में। 115 पे 2। एक 180 रन बन सकते हैं अगर यही शरह बरकरार रहती है, लेकिन सदर्न पंजाब को इससे आगे जाना होगा।
क्योंकि यहाँ पर इनकी सोच जो है वो 200 के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि 8 विकेटें 7 ओवर से भी कम यहाँ पर गेंदें हैं। आसिफ आफरीदी के खिलाफ इनको एहतियात बरतनी होगी। ये कई बार रिसेंट पास में इनको आउट कर चुके हैं कि आसिफ बड़ा सोच समझ के किसको गेंद कर रहे हैं, उस तरह से ये पिच करते हैं, आपको आसानी नहीं देंगे बिल्कुल भी। इस बार फुल टॉसी, फील्डर आ गए गेंद के नीचे, लेकिन नहीं हाथ लगी। हालांकि बहुत ज्यादा हाइट पर गेंद नहीं गई थी और वहां पर नियाज खान थे। मैंने यही बात की, खतरों से खेलते हुए इन्होंने इसको स्वीप किया, ये फुल टॉस हो गई थी और बस ऑलमोस्ट ये गेंद जो है उंगलियों के पास से होती हुई निकल गई। 6 रन हासिल हो गए। और दिलकश तरीके से इस बार प्लेस करने में कामयाब हुए। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। ये शानदार छक्का, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की और ये आला क्रिकेटिंग शॉट था, इनसाइड आउट। ये एक नई चीज देखी मैंने आजम की, बाहर निकल के गेंद तक पहुंचे और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया है। वरना ये अपनी जगह खड़े होकर अपने ब्रूट फोर्स यूज करते हैं, लेकिन इस बार ये सही हरबा एक अच्छे बॉलर के अगेंस्ट। मुकाबला सख्त है। आसिफ आफरीदी अब क्या करते हैं, खामोश वो भी नहीं रहेंगे। आजम खान जो हैं पिछले चंद हफ्ते इन्होंने खासे तनाव में, दबाव में गुजारे हैं। इनके बारे में बहुत बातें हुई, लेकिन अब आज लग रहा है कि वाकई ही ये दबाव से इनको छुटकारा मिल गया है उससे। लेकिन इसमें कोई कलाम नहीं कि ये टैलेंटेड बैट्समैन है, वक्त के साथ साथ ज़रूर बेहतर होंगे। 129 पे 2। ये जो आने वाले खिलाड़ी हैं इनमें मोइनुद्दीन, ये विकेट कीपर बैट्समैन हैं। इसके अलावा यूसुफ बाबर, ये नया इजाफा, इनका डेब्यू है। ये बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं यूसुफ बाबर और ये पाकिस्तान की टीन एज क्रिकेट में नुमाइंदगी कर चुके हैं। अच्छे खिलाड़ियों में इनका शुमार किया जाता है, स्टाइलिश बैट्समैन हैं। टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद आज नौजवान खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला अच्छा रहा सदर्न पंजाब की इंतजामिया की जानिब से। शारून, हालांकि उन्होंने रन 18 ही बनाए, लेकिन वो बहुत सी आंखों को भाए। आजम खान के 3 जबरदस्त छक्के, ये इन्होंने पिकअप शॉट खेला, इनकी बड़ी पावर है। ये स्वीप किया इन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से और उसके बाद सबसे बेहतरीन शॉट था ये, अटैक किया, कदमों का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। अभी तक 1 चौका 3 छक्के लगा चुके हैं और ये जो इन्होंने 25 रन की इनिंग्स के लिए 11 गेंदों पे, सदर्न पंजाब का स्कोर तेजी से 130 पे चला गया। तो सिकंदर, अगर ये अपनी फिटनेस पर और ज़्यादा काम करते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, तो कोई वजह नहीं कि ये पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस ना आ सकें, क्योंकि आपको T20 क्रिकेट में ऐसे स्ट्राइकर की ज़रूरत रहेगी। आज भी इनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा है। स्पिनर को ये बड़े शॉट आसानी के साथ खेल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि फिटनेस की वजह है इनका बाहर होना, इनके फॉर्म इनकी वजह है, क्योंकि ये जब टीम में थे ऐसे ही थे। असल चीज़ है कि बल्ले के साथ इनका अभी तक जो है वो दोस्ती इस सीज़न में हो नहीं पाई। टॉप एज लगा है, मौका है, चांस है और आउट। ये जिसके मैं जिक्र कर रहा था,
शॉट मारने गए थे, आइडिया सही था, लेकिन इन्होंने सोचा कि गेंद पे पेस होगी, जोर से नहीं खेला शॉट को, सिर्फ एंगल किया बैट को जिस रीजन में खेलना चाहते थे। जी, और ये कटर किया था इस बार हार्ड लेंथ से, और इसको तेज गेंद समझकर प्लेस करने के लिए गए। अच्छा कैच लिया माज खान ने बाउंड्री लाइन पर। सिर्फ चौके छक्के लगा रहे थे आजम खान, भागने में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, और इसी कोशिश में वो 25 रन पर आउट हुए 130 पर 3। आजम खान की बरक रफ्तार इनिंग्स अपने अख्ताम को पहुंची। अपनी टीम को एक उठान दी है उन्होंने। आमिर यामीन जो कप्तान हैं वो खेलने को पहुंचे। इनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, तकरीबन 140 का है। फाइन लेग शॉट है, इसके अलावा डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। आजम खान स्लो बॉल को रीड नहीं कर पाए, पेस पर खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एंगल किया था बैट को। टो एंड पे लगा, अच्छा कैच लिया। देखें डिस्टेंस कहाँ है, 75 मार्कर है, बाउंड्री से भी काफी दूर है, तो ये शॉट कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इस तरह से आजम खान की इनिंग्स खत्म हुई। 25 बनाए 13 गेंदों पे, बूस्ट जरूर दिया है उस टोटल स्कोर को। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन और होती है, क्योंकि अभी 15वें ओवर का खेल चल रहा है, अभी भी 5 ओवर बाकी हैं। अच्छा शॉट खेला, 4 रन। इस बार बैकफुट पर जाकर ये वार किया, गेंद शॉट इन लेंथ थी और इसे चुटकी में उड़ा दिया। ये एक प्रॉपर बैट्समैन का शॉट है, वो ओपन करने आया। देखिए शानदार शॉट, विड्थ दिखी, हाइट दिखी, और इसको प्लेस कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के बराबर से। और इतनी अच्छा टाइमिंग, जोरदार शॉट के मौका भी नहीं है डाइव का। मैं रियलाइज कर लिया है यहाँ अरशद इकबाल ने कि गलती हुई है, लेकिन इन्होंने अपनी चॉइस अच्छी रखी है। टपाल दानेदार टी, और ये मोमेंट है क्रिकेट के साथ। आज काफी लोग आए हैं मैच देखने के लिए, इतवार का दिन। और उनको मायूस भी नहीं किया, बल्कि महसूस कर रहे हैं तैयब ताहिर अपने उम्दा शॉट से, क्योंकि ज्यादातर इन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं। 136 पे 3। तैयब ने 69 रन बनाए हैं, उनके पास सुनहरी मौका है आज पहली T20 सेंचुरी बनाने का। और दूसरा बड़ा स्कोर आजम खान का था, वो 25 रन बना सके। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन शायद थोड़ा सा और तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है मैदान में। इन्हें 1-2 पर भी तवज्जो देना होगी। तो ये और अब हाथ खोलने का फैसला किया गया और खेला इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। जोरदार हाथ दिखाया तैयब ताहिर ने, ये उनका तीसरा छक्का। नियाज खान की फेंकी हुई लेंथ को बड़ा जल्दी पिक कर लिया तैयब ने। उनको पता चल गया था कि ये गेंद बिल्कुल इनके आर्क में है।
और शानदार शॉट लगा के जब बल्ले पे गेंद लगता है तो उसी वक्त अंदाजा हो जाता है कि ये गया 6 के लिए। देखने की भी उन्होंने जरूरत नहीं समझी। बाकी मादा ओवर ये दबाव में रहेंगे क्योंकि पहली गेंद पर ये छक्का लगा है। क्या स्कोर देखते हैं आप? बची हैं करीबन 28 गेंदें। देखिए यहाँ 200 रन तो कोई वजह नहीं कि ना बन सकें और इनकी कोशिश होगी कि 210 215 की तरफ जाया जाए। आमिर यामीन खुद आए हैं, बैटिंग में उन्होंने प्रमोशन लिए। मोइनुद्दीन और यूसुफ बाबर से पहले खेलने का फैसला किया। लेकिन आज के दिन में सिकंदर, क्या जो सदर्न पंजाब के खिलाड़ी हैं, ये मैच जीतना जो है वो इनकी पहली ख्वाहिश होगी या इनफरादी तौर पर अपने लिए रन्स और विकेटें लेना? नहीं, जीतना पहली ख्वाहिश है। ऑफ कोर्स जीतना ही चाहेंगे और जीतेंगे तो कहीं ना कहीं इनफरादी परफॉर्मेंस आई होगी और यही कोशिश है इनकी। इन्होंने 2 बड़े अच्छे मैचेस जीते लेकिन 2 बहुत लेट जीते। और आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि इनका मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल पाया, जो कि अच्छा खासा है, स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर था। कप्तान भी तब्दील हुए इनके। ये वाहिद टीम है जिसके कप्तान तब्दील हुए। पहले सोहेब मकसूद थे, फिर आमिर यामीन। आज इतवार का दिन है तो क्रिकेट अपने जोरों पर है। बहुत सारी क्लब टीम्स जो हैं वो रेगुलरली मैचेस खेलती हैं। इनफैक्ट एक दिन में 3-3 मैचेस होते हैं इतवार के दिन खास तौर पर। ये एलसीसी ग्राउंड पर तैयब ताहिर जो हैं, ये इनका होम ग्राउंड भी है। इनकी जो पीएनटी जिमखाना है वो यहीं पर प्रैक्टिस करती है। आज हमने बहुत ज्यादा स्क्वायर कट और बैकफुट पंच देखे हैं इस इलाके में, सदर्न पंजाब के खिलाड़ियों की जानिब से, तैयब और दीगर की जानिब से। मुझे लगता है उस मैच में विकेट गिरी है, ऐसा लग रहा था मुझे। बता सकते हैं नया बैट्समैन कौन है लाल हेलमेट में जो आ रहा है? मुश्किल है। इतनी दूर रस निगाहें नहीं है सिकंदर, लेकिन चलें, विकेट तो गिरा है, ये तो मान। ये तो बिल्कुल है। तो मैं बता रहा था तैयब ताहिर खेलते हैं ये पैंथर एंड जिमखाना टाइगर्स के लिए। अब्दुल रज़ाक खेलते थे पहले। ये भी पहली बार हुआ होगा कि 2 मैचेस की कमेंट्री कर रहे हैं एक साथ। 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 147, 3 खिलाड़ी आउट। Tayyab Tahir's been on a bit of a rush throughout this innings. He's played really nicely in some good buildings there on that Manhattan. It's quite a nice graph actually, the way they accelerated in the middle and they've just settled down a bit, lost the wicket. They've got to just regroup a fraction before they start cutting loose. Is this going to be caught? It is. Well, that's really disappointing. He's played so well. Very disappointing that he's he was trying to loft it out of the ground, couldn't connect the way he wanted to, caught at the mid-wicket boundary. Amir, that's a crucial wicket. This is where they needed some runs. Tayyab, sorry. And he was playing so well. 147 for 4.
Yeah, disappointing. I would love to have seen Tahir go on and get 100 there. Monadin now at the crease, 4 down. There's not too many overs left. Imran Khan Sr. is 1 ball into his 3rd over. Hard down the ground. That's a good shot. Straight enough. Yes, it is. 4 runs. Beautifully played. Charges on, definitely. They're going for their shots. Last 4 overs. Good shot, this one. Down the ground and 4 runs. Nicely played. A lot of power and timing also behind it. Is that a 6 easy or a 4? It's a 4, 1 bounce, 4. Yeah, it's a good start. 2nd ball of the over, though. Wicket off the 1st. Good comeback. Whipped away this time. There's a man out there as well on the bounce. Tahir really played nicely. 78 of 48 balls. 3 sixes and 8 fours. In his knock, he was just going to hit it as far as he could, really, but he got too much underneath it. That was the problem. And Gul was the man that took the catch quite comfortably. Imran Khan delighted. The batsman not so much. He would have loved to have been there right at the death, steering his ship all the way to the 200 mark. With a bit of luck, if he kept firing away with those maximums. Oh, that's clever. Very clever. Buggy cam covering that nicely. Nicely played, that one. Risty waited for the ball and just waited and nicely played it for 4 runs. Clever shot. You said nicely played. The buggy cam was nodding as well because he got it. He got this shot beautifully. Perfectly captured by the buggy cam. It's an intelligent buggy, I tell you. It's a busy buggy. 2 balls left in the over. 9 from it so far. Slower bouncer. Nicely bowled by Imran Khan. The slower bouncer is becoming more and more effective as you go on, as bowlers perfected more. Have to watch out for that in the later games, the big games, the semi-finals and the final. Split finger delivery. That one cleverly bowled also. I'm particularly impressed with Tayyab, his innings, wonderful innings. I mean, he played strokes all around the ground, and he's going to be a household name in Pakistan pretty soon, the way he played the other day and today also. So I'm so happy to see some of these you know, younger players playing so well in this tournament. Oh, it's high on the bat, and it's going to fall safe. Just the one to finish the over. So in the end, it's a good enough over. It's 11 from it, 17 gone, 158 for 4. Just going to let you know about our broadcasters. There's the television boys at the top, all over the place. You can catch this on TV, but streaming, I just want to get your attention to PCB YouTube channel and PCB Facebook page for HD high definition quality. Up on that shot, he was unsighted, actually, the fielder down there. The sun was just interfering with his vision for a while there, but he was never going to catch it anyway. But a bounce off the first ball is important. Good shot, this one, behind the square for 4 runs on the leg side. Bowler not happy.
batsman well aware of the fact that he had to get runs. Amir, it's their job now to take this innings forward after Tayyip Tahir's done the hard work, and also to an extent the cameo by Azam. Now, was that above waist height? We'll have to wait and see what the umpires say about it. They're going to try and scamper back for the second. They'll make that comfortably. Do the umpires say anything about a free hit? No, they don't. If it is above the belt height, that's the best way to... Oh, short run's been called as well by the looks of things. Let's have a look at that for starters. Umpires spotted that. You can see him standing there looking anxiously. Is it a short run? You've got to get behind that line. Oopsie. All that running for nothing. Instead of 2, it's just 1. But I thought that ball was also above the belt or waist height of the batsman on the full. Big swing and a miss. Well spotted that short run. Great eyes. Let's see how this one was bowled. Slower one. Couldn't connect. This is the thing with slower deliveries. You can always beat the batsman. You can deceive him. And if you use it well as a surprise weapon, you could be really great with these. And oh, he's got underneath that one, and he likes it as well. He just stood there like a golfer. Hit it straight through the line and knew that was gone. Didn't have to look too far, actually. He looked like he was looking down to pick up his tee after the shot. In the slot, you can't bowl there, and great response, great shot. Full flow of the bat, flourish, and 6 runs. No slot bowling. I'm sorry, can't be done. You have to be more clever than that. It was a great shot. Iqbal's numbers, actually, the bowling numbers are really good. He was going at under 6.5. Now, a couple of boundaries in this over have pushed it up to just a fraction over 8 now, so he'll be disappointed in his last over. But people have got to realise that happens when you're bowling the death. So there's different ways of reading the performances of bowlers. Guys that have to do the hard yards like this are always going to get tapped. Always. Where's that tee? Wide call. Well, T20, so not so much the bowler's game. I mean, he could be bowling well, and then one delivery like that in the slot goes for a few deliveries, and then we're all over the place as far as they are concerned. You know, they might have bowled a really nice spell. So more a batsman's game, I say. I wonder what it's going to be like in the ICC T20 World Cup on those pitches that are going to be worn up there in the UAE. That's flicked away on the leg side. Beautifully played. One bounce. That's gone for 4. Almost in exactly the same spot as the first ball of the over. Nicely played, this one. Just guided it for 4 runs on the leg side. Good awareness by the batsman. Batsmen become really clever these days. The shots they play, the younger batsmen also, you know. One thing we need to remember is these younger batsmen that we keep referring to are guys that when they first picked up a cricket bat, they saw T20 cricket on TV. So it's not as though they sort of, like us, we sort of saw T20 later. These people just grew up with it. So they've been practicing these weird and wonderful shots ever since they could hold a bat, which is, I think, just wonderful to see as well. And perfected them now a lot of the time. 16 off this over. Strike rate
Amir's strike rate is 209. And one ball to go. He's got underneath that, and he has got it through the fingers as well. So he's going to pick up a single. Means 17 off the over. That's a big one. 18 gone, 175 for 4. So it's pretty solid, those last few overs. What have they scored in the last 30 balls? 60 runs they've scored and lost only 2 wickets. So that's really good work in the last 30 balls. 2 overs remaining now. Skipper's strike rate, by the way, is 184 in the last 5 overs. It's gone too high, I think. Yep. Imran Khan is camping. Iqbal, rather, is camping underneath it, and Imran Khan is the successful bowler. Iftikhar, my mistake. That's the wicket. Amir Yamin was trying to loft it out of the ground, couldn't do that, and nicely taken by Iftikhar. He dropped him off the previous ball, and he's now caught him, Iftikhar. So he goes now for 24. He's annoyed with himself. 175 for 5. Second wicket to Imran Khan Senior. Slower bouncer. Just the one. Let's see if they can get 200. They've still got about 2 overs. New batsman Yusuf Babar, left-handed. Moinuddin was pretty good the other day. He only got to play a few balls, but I think he hit a 6 on the first ball he faced. And that's the catch. Iftikhar settling in nicely, camping under it and taking the catch really comfortably. That single, by the way, has just taken them to 176, which is their second highest total in the tournament, Southern Punjab. The best is 217 for 6. I think that's safe. Only the one. Yeah. So how challenging is this going to be? That's the question that needs to be asked. Of course, quite a few of the KP players have moved into the national bubble. They're gun players. People like Rizwan, Fakar. Yeah, without Afridi also. It's hammered, but straight to the fielder, just one. Someone needs to play a cameo here to get them to 200. Imran Khan, a very seasoned bowler, knows exactly what to do, what lengths to bowl, not to be in the slot too much in these slog overs. But the batsmen, like Casey was saying, are very clever these days. They've grown up watching T20
and practicing shots, watching players like A.B. de Villiers, 360 players. So they know how to play all kinds of shots, which of course we didn't grow up with. 2 balls left in the over. Need to be 2 big shots coming. There's one. That's bounced away. Good boundary off the second last. Maybe this is why he's got 8 on his bat. There's 4 of them. They want 8 off the last 2 balls of the over. Inzi had number 8. And now Hafiz has number 8. So good players, those two. Great to see Mohammad Hafiz, by the way, nice and fit again after dengue fever and a few issues. Right, last ball. Looking for another boundary, and he has got 8. 8 off the last 2 balls of the over. That's what they needed. Good finish. 11 from it. 19 gone now. 186 for 5. One over remaining. What can they get? Can they get to 200? 14 off the last. That's maybe a big call. National squad, by the way, were at the National High Performance Centre just next to us earlier today, having a good solid training session. Sliced away square. Let's see what these two can do. Moinuddin, if he can show some power, a glimpse of what he showed the other day, the 6 he played really powerful. So this is the time, last over, slog a few out of the ground. Salman looking on, seeing what his teammates can do. Looking a bit pensive. He is indeed. There's Khan. Oh, it's a very good delivery first up. Slower ball, slower short delivery. Threw that shot far too early. Nice shot, slower ball. Played it early. Couldn't connect. Next time, just wait, see what the bowler is doing, and then try and hit the ball. Not too much time to look now. I'm afraid you got to go, you got to dip, but you need to make sure you get in tune with the bowling. That's important. Digs that out. Just the one. Now Khan has went for a few in his first 3. He was going at 11.5 in his first 3. So this is a bit of a tough call for him to come back and bowl the last now. But his first 2 balls have been really good. KP, we're hoping that he can finish, stay strong, and finish with his last 4. Iftikhar likes to throw these young players in the deep end straight away. See what they're made of, what kind of character they got, if they can handle the pressure, bowling the last over. They need to win 1 out of these last 2 games they've got, KP, this and also tomorrow. Win one of those 2 to qualify for the semis. Oh, he ducks underneath that. That's very well bowled. Slower bouncer again. Yeah, it was nicely bowled, but I'm surprised at the shot, the response. A pretty test match response. Standard, bowler, bouncer, duck under it. Just signalling to his mate there that that was a little bit of a cutter. The short cutter. So just 1 off 3 balls so far in the last over.
drags that on the onside. Maybe the wrong batsman at the wrong end. Now let's see what Moinuddin can do. If he can tonk it out of the ground or get maybe 2 fours or a sixer in the last 2 balls. I'm sure that he will give it a try and get as many runs as possible. But this has been a good over. Nicely bowled. Nice courageous over. He's tried different things, this young man. And he also knows exactly what field he wants just to finish. He's asking for a fine leg to be back. Wants the sweeper up off the fence on the offside. So it's vacant on the offside on the fence. So he goes leg side. That's cleverly bowled. Looking to jam up the batsman as he saw him back away and try and look to play on the offside. Once again, it's nice to see a young man step into a senior bowler's shoes, the ones that have gone and joined the World Cup squad and perform well. Bowl a really nice last over. It's never easy. He's tried different things, the slower bumper, the normal delivery, lots of things he's trying. So it's pretty good. It's nice to see that they're courageous enough to do that. Right, here we go. This is the last ball. 189 they've got. Only 3 runs off the last over so far. Can they finish in style? Flex that around, and that is a pretty good shot. That's nicely played. It's a boundary to finish. It's going to take him past the 190 mark. 193 it's going to be in the end. And that's a pretty good total on a track which I think was providing a bit of assistance initially. There was a little bit of turn for the spinners as well. It's a good finish, this shot. Yeah, cleverly done in the end. Moved away, gave himself some room and played it behind the keeper. Partnership of 18 of 11 balls. They'll have a bit of momentum going into that change room at the halfway mark. As we look back at the ATF Southern Punjab card, Tahir right at the top, 78 of 48 balls. He really did play very nicely indeed. And a couple of 20s. Azam Khan, 25 off 13. That was nice work, and 24 off 13 for Amir as well. Let's go downstairs now and join Sikandar. आजम ओवरऑल इस टूर्नामेंट में हमने देखा खासतौर पर लाहौर आने के बाद पावर हिटिंग इतनी आसान नहीं है जितना लग रही हो ऊपर बैठ के. कैसा देखा है आपने एज अ बैट्समैन? आई थिंक जी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप जब नीचे एंड में आते हैं 5-6 ओवर्स आपके पास रह जाते हैं तो हर बॉल पे हिट करना काफ़ी मुश्किल होता है. सो कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं. लेकिन अभी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इनिंग्स तैमूर ने ऊपर से खेली है तो हमें भी काफ़ी बूस्ट मिला कि हम नीचे से जाके एक्सेलरेट करें और हुआ तो और अच्छा टोटल लगाया बोर्ड पे. पिच के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बॉल आ रहा है बल्ले पर बड़ी हिट्स के लिए या यहाँ पे चेंजेस लाने पड़ते हैं अपनी बैटिंग में? आई थिंक एज अ बॉलर अगर एडवाइस दूँ बॉलर्स को तो यही है कि यहाँ स्लो वन कटर ज़्यादा चलेंगे क्योंकि पिच आई थिंक इतना ट्रू है नहीं. लेकिन कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह जितना जल्दी रिस्ट्रिक्ट करें उतना हमारे लिए अच्छा होगा. अच्छा टोटल है 194 टारगेट है, डिफेंडेबल है ताकि 2 पॉइंट्स के साथ जो है एग्जिट हो तो एक पॉजिटिव नोट पे हो. जी बिल्कुल, देखिए एक पॉजिटिव नोट होगा अगर हम यहाँ से जीत के जाते क्योंकि आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट आने वाली है तो एक जीत के साथ एक मोमेंटम के साथ जाएंगे तो हमारे लिए आगे वाले टूर्नामेंट्स में भी अच्छा होगा. ओके आजम, गुड लक. थैंक यू. Sikandar, thanks very much. Now let's not forget that KP won the toss and asked them to bat. Let's have a look at the bowling from KP. Imran Khan Senior 2 for 35 of his 4 overs. Iqbal 1 for 36. His numbers are really good actually until the last over, and he got a little bit of tap. A couple for 42 off Niaz Khan, and 10.5, 10.6, and 10 runs and over for the last 3 bowlers on that list. So overall, it's a little bit of leather chasing there. Run rate going at 9.65. And KP need 194 runs off 20 overs, and they need to go at 9.7 runs per over.
कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, जहां पर एटीएफ सदर्न पंजाब की टीम ने 193 रन बनाए। 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए। तैयब ताहिर 78 रन के साथ आज काबिल जिक्र स्कोरर थे। सिर्फ 48 गेंदों में उन्होंने ये इनिंग्स खेली और उसके बाद दूसरा बड़ा स्कोर आजम खान का था 25। और आखिर में यूसुफ बाबर, इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। हालांकि गेंदें सिर्फ 6 खेले, लेकिन जो उनकी बैटिंग का अंदाज था और बाउंड्रीज लगाने का, उससे लगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट से वो हम आहंग है। इनिंग्स आगाज करने के लिए ये शाहरून आए थे और उनके साथ तैयब ताहिर। इब्तिदा में ऐसी गेंदें मिली जिनको बैकफुट पर खेलने में आसानी हुई। ये बड़ा अच्छा बैकफुट पंच था। फुल शॉट शाहरून ने लगाए। अच्छी बैटिंग देखने में आई। दोनों ओपनर्स की जानिब से खासे कंफर्टेबल थे, यहाँ तक कि ये कैच आउट हुए आमिर अजमत के हाथों। शाहरून, फिर सलमान अली आगा को भेजा गया। उनने भी जारहाना अंदाज अपनाया। दूसरे एंड पर डट कर बैटिंग की यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में। और राइट हैंडर तैयब ताहिर ने आज फिर अपना लोहा मनवाया है। सलमान अली आगा शॉर्ट गेंद पर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। नियाज ने ये कामयाबी हासिल की। आजम खान आए और उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिए। तैयब ताहिर ने भी उनकी देखा देखी छक्का लगाया। ये आजम ने गेंद को सिर्फ फ्लिक किया था और ये बिलाशुबा ये शॉट ऑफ द इनिंग्स था। लेकिन जल्दी ही आजम ने लूज शॉट खेला। एक ही फील्डर था स्क्वायर लेग पर। माज खान को कैच दे बैठे, लेकिन रन्स रुकने में नहीं आ रहे थे और ये बड़ा छक्का तैयब लगाने में कामयाब हुए। तो फिर आखिर शॉर्ट गेंद जिसको बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट कर रहे थे, उसी पर निशाना बने इमरान खान का। कप्तान खेलने के लिए मैदान में उतरे आमिर यामीन। उन्होंने इब्तिदा में अच्छे शॉट्स खेले और रन्स नहीं रुक सके इस पूरी इनिंग्स में। हालांकि विकेटें भी गिरी। आमिर यामीन ये आउट होने वाले 5वें और आखिरी खिलाड़ी थे। और उसके बाद यूसुफ बाबर, इन्होंने ये जो स्कूप किए और ख़ास तौर पर ये जो स्लाइस किया, ये बड़ा ही दिलकश था। अच्छी बैटिंग की यूसुफ बाबर ने। केपी के बॉलर्स आज काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। हालांकि आसिफ अफरीदी की इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन आज वो भी रन्स के लिए गए। और नियाज खान ने सिर्फ 2 कामयाबी हासिल की और इमरान खान जूनियर ने एंड पे आके 2 और अरशद इकबाल ने 1 और 193 का टोटल इनके बॉलिंग के अगेंस्ट पोस्ट हुआ। यहाँ ये मुश्किल हदफ है, लेकिन अहलियत मौजूद है यहाँ केपी को कि वो इससे आगे निकल सके, क्योंकि बॉलिंग कमज़ोरी है। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने यही देखा है, सबसे कम विकेटें ली हैं सदर्न पंजाब के बॉलर्स ने, सिर्फ 42। और ये आप देख सकते हैं इस इलाके का एक फ़ज़ाई जायज़ा है। ये एफसी कॉलेज लाहौर है, जो एक ज़माने में शहर से बिल्कुल हट के बाहर हुआ करता था। और दरअसल ये जो शहर है, ये ज़्यादातर क़याम पाकिस्तान के बाद आबाद हुआ, जो नहर के मगरबी तरफ है। और ये इमारतें आप देख सकते हैं। एफसी कॉलेज, यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ ने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया था। ये अच्छे खिलाड़ी वहाँ से निकले हैं और इसी मुनासबत से एफसी कॉलेज एंड कहा जाता है। और ये देखिए आगे गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन के इलाके हैं, गैलेक्सी और फिर तारीखी इचरा। और उससे आगे मुजंग, ये जो बाएं तरफ सड़क आपको नज़र आ रही है फिरोजपुर रोड, ये शहर से ही होकर आती है। मुजंग वो इलाका है, वसीम अकरम का इलाका। ये जीता जागता शहर और ये जीता जागता टूर्नामेंट नेशनल T20 कप इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा है। तो दूसरी इनिंग्स का खेल शुरू होने वाला है। आमिर अजमत के साथ मोहम्मद हारिस आ रहे हैं। कल दोनों जल्दी आउट हो गए थे।
आज इनको भी हौसला मिला होगा, जिस तरह तैयब ताहिर अच्छा खेले हैं। नौजवान खिलाड़ी यहाँ उभर कर सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लेके जो भी बैटर सेटल हो रहा है उसको बहुत खुले रन्स मिल रहे हैं बाद में, क्योंकि पिच में सच कुछ भी नहीं है। सिर्फ नए बॉल पे थोड़ा सा ध्यान करना है, स्विंग होगा। और आमिर यामीन सलाहियत रखते हैं अर्ली ब्रेक थ्रूज देने में, इनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, लेकिन रन्स मौजूद हैं इस विकेट पे, तो ये हदफ है थोड़ा मुश्किल, लेकिन पहुंच से बाहर नहीं है। यहाँ दोनों दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है, आज अच्छा कैच लिया था आमिर अजमत ने। इब्तदाई अयाम हैं इनके भी ये वाइट बॉल करियर के। तो ये जो हिंसे आपने देखे, इनसे ये कहीं बेहतर बैट्समैन है आमिर अजमत। तो पहली गेंद आने को है आमिर यामीन पवेलियन एंड से, काफी आगे निकल आए, लेकिन आमिर यामीन ने फौरन ही बावर कराया कि ये काम करना इतना आसान नहीं होगा उनके खिलाफ। अच्छी बॉलिंग करते आ रही हैं, अच्छी फॉर्म में आमिर यामीन, और स्विंग भी अर्ली ऑन इनको मिलता है, लेकिन अच्छी इंटेंशन थी हारिस की, जानते थे कि स्विंग होगा, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके अनसेटल किया। और इसलिए भी कि ज्यादा तेज बॉलर नहीं है आमिर यामीन, लेकिन बैट्समैन को बाहर आते देखकर अपनी लेंथ को बिल्कुल तब्दील किया। एक फील्डर है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, दूसरे डीप थर्ड मैन पर हैं। काफी दलेर बैट्समैन हैं मोहम्मद हारिस। हाल ही में बहुत से लोगों को हैरानी हुई थी इनका नाम पाकिस्तान के स्क्वाड में देखकर। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 50 ओवर की सीरीज थी उसमें स्क्वाड का हिस्सा थे मोहम्मद हारिस, रिजर्व विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के। ये फिरोजपुर रोड आप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कसूर से होकर आगे जाती है गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ, और कसूर को ये लाहौर से मिलाती है। आमिर यामीन जैसे बॉलर हैं, उनके खिलाफ बेहतर स्ट्रेटजी यही होती है कि या तो आप पहले आके क्रीज से बाहर खड़े हो जाएं, क्योंकि इनका बॉल एंड तक स्विंग होता रहता है, तो अगर आप क्रीज में ही रहेंगे तो आप फंसेंगे, और यही हारिस करना चाह रहे थे। और अजमत ने अच्छा मनोवर किया, वेट किया, ये भी एक टेक्निक बेहतर है इनके खिलाफ। पर चेस करने जाएंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शायद यही समझने की ज़रूरत है हारिस को कि इब्तिदा में उनको कदम जमाना होंगे, और यह क्रॉस सीम डिलीवरी थी, आहिस्ता भी आई। शुरू में देखभाल कर खेलने की ज़रूरत है, 1-2 ओवर्स, उसके बाद रवानी आ सकती है आपकी बैटिंग में इस शाहरा की तरह, जैसे इस पर ट्रैफिक की रवानी। नए बॉल पे बाउंस भी हो रहा है, इसलिए ये अप शॉट इतनी कनेक्ट नहीं हो पाएगी। बेहतर ये है कि इसी शॉट को अगर नीचे खेलने जाते हैं तो नताइज मुख्तलिफ होते हैं। और शानदार स्ट्रोक लगाया, मुश्किल होगी थर्डमैन को। 4 रन्स। हारिस ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद देखी और उनको मनमानी करने का मौका मिल गया। अच्छा कट शॉट। एरिया वही था, लेकिन इस बार लेंथ मुख्तलिफ थी और भरपूर फायदा उठाया। सिर्फ बल्ले का मिलाप करना बाकी था, कोई टाइम नहीं मिला फील्डर को। थर्ड मैन बाउंड्री पे मौजूद था, लेकिन बहुत तेजी से 4 रन्स के लिए गया। इस वक्त 4 फील्डर ऑन साइड में भी लिए हुए हैं, तो गेंद जो है वो बल्ले से लगने के बाद खत्म कहाँ होनी चाहिए आइडियली बॉलर के लिए। एक बार फिर ये ऑफ साइड में खत्म हुई। 1 रन हासिल किया हारिस ने। तो पहले ओवर में केपी ने बनाए 7।
साहिबजादा फरहान इन दिनों मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। रावलपिंडी में नंबर 3 खेले थे, लाहौर में नंबर 4 की पोजीशन ली है। तो पिछले मैच में इफ्तिखार अहमद के साथ जो इनकी पार्टनरशिप निभी थी, उसी ने टीम को कामयाबी दिलाई सिंध के खिलाफ। और आज तो कामरान गुलाम भी नजर आ रहे हैं। बैटिंग काफी मौजूद है और फॉर्म में भी है तकरीबन सारे बैटर्स इनके। ये फजल महमूद इनक्लोजर में ये दरअसल ये मैच देखने के लिए मौजूद हैं जो क्रिकेटर हैं इस वक्त बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान ये खिलाड़ी जो अगले मैच में शरीक होंगे, इनमें वहाब रियाज भी थे। आज मुलाकात हुई है इस नेशनल T20 कप में हिस्सा लेने वाले 100 खिलाड़ियों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब से। उन्होंने अपने विजन से और अपनी डायरेक्शन से आगाह किया। अपील, लेकिन ये ख्याल है जमीर हैदर का कि बल्ला जमीन से टकराया। ऐसा ही लग रहा है, बहुत तेज बॉल करते हैं, अच्छी पेस के साथ अली माजिद, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इनको रन्स भी पड़ सकते हैं। ये एक बार देखते हैं। और यही लग रहा है कि बैट जो है वो जमीन पे लगा था, पल्ले से काफी दूर था गेंद। और ये विकेट कीपर से खासी दूर रही गेंद। ये 5 वाइड के रन्स हैं। जाहिर है कि विकेट कीपर को आपको कसूरवार ठहरा नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल ऑफलाइन थे, आजम खान को मौका नहीं मिल सका। इस तरह के जो बॉलर हैं अली माजिद, किसी अंदाज से जो बॉलिंग करते हैं आपको ज्यादातर टेप बॉल क्रिकेट में दिखाई देंगे। वेल बॉल्ड। इंटरेस्टिंग इनका एक्शन है और तकरीबन सर के ऊपर से हाथ आता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लेग साइड पे ड्रैग कर जाते हैं और अच्छी पेस के साथ तेज गेंद करते हैं। टाइम ज्यादा नहीं मिलता बैटर को कि जल्दी लेंथ पिक करें, स्किड होता है। बैट पर ये लगी जरूर थी, लेकिन स्टंप्स को छोड़ती हुई जाती। यॉक करने की कोशिश की, इस बार वाज़े तौर पर स्टंप्स के बाहर जाती। उनकी ग्रिप और सीम पोजीशन जो है वो काफी दिलचस्प है, कभी कभी बिल्कुल सीधी सीम पड़ती। बहुत ज्यादा दोनों खिलाड़ियों ने आवाज उठाई और अंपायर को कायल कर लिया। हारिस को LBW आउट करार दिया गया। तो पहला ऐसे लगा था कि शायद ये भी लेग स्टंप के बाहर ही निकल रही है। सही डिसीजन था, ये स्वीप करना चाह रहे थे लेकिन बिल्कुल भी लेंथ पिक नहीं की थी, पहले ही माइंड बनाया हुआ था और तेज गेंद आया और बिल्कुल स्टंप्स को अटैक किया था इन्होंने, जो कि अच्छा ऑप्शन था और उसी वजह से कामयाबी भी हासिल हुई। मोहम्मद हारिस सिर्फ 6 रन बना पाए, KP 13 पे 1। कामरान गुलाम ने 1 डाउन पोजीशन आई ली है। हमने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है मुस्तकिल इनको खेलते हुए T20 के टूर्नामेंट्स में।
यही रोक लो, यही रोक लो, यही रोक लो। नहीं जान ना, इनके आने का सबब ना ये LBW था। देखना है कि गेंद क्या स्टंप्स के बाहर तो नहीं जा रही थी, शायद ये लेग स्टंप को हिट कर जाती। यही रोक लो, यही रोक लो। ये बैट्समैन अंपायर दोनों को इस ओवर में संभलने नहीं दिया। अली माजिद ने बहुत कम वक्त लिया दोनों गेंदों के दरमियान। 2 के बाद 13 पर 1। ये हुकूमत पंजाब की बड़ी जदीद लाइब्रेरी है। यहाँ से चंद मिनट की मसाफत पर ये लिबर्टी मार्केट्स, पहले एक ज़माने में यहाँ नर्सरी हुआ करती थी और अब उसकी जगह लाइब्रेरी ने ले ली है। यहाँ पे कामयाबी बॉलर्स को तभी हासिल होगी जब विद इन विकेट्स ये रखेंगे, और लेंथ बहुत मैटर करती है। ये बात बार बार की है कि पावर प्ले में बहुत ज़रूरी है नए बॉल को यूटिलाइज किया जाए। और अच्छा मूव था कि अली माजिद के साथ आमिर यामीन अटैक कर रहे हैं। इस बार अपनी रफ्तार कम की और मोइनुद्दीन रन आउट करना चाहते थे। जो जो सूरज नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि शाम के साए गहरे होते जा रहे हैं इस वक्त शहर लाहौर पर। और ये जो बुर्जो बाम है ये बदल गए हैं। लाहौर अब आपको वैसा नहीं लगता, ये अब आपको जिद्दत और कदामत का इम्तजाज लगेगा। इस इलाके में ज़्यादातर जदीद इमारतें। और इस बार बाल बाल बचे। इनका ख्याल था कि गेंद स्क्वायर लेग की तरफ जाएगी, लेकिन ये ऊपर से सीधी स्टंप्स पे गिर सकती थी। अच्छा बॉल था ये आमिर यामीन का, बिल्कुल बॉडी के अंदर कराया, टाइम नहीं मिला हजमत को और कटर था ये। लकी रहे दोनों तरह से कि कनेक्ट भी होता तो हो सकता था टॉप एज होता, और स्टंप्स पे भी बॉल लगते बार बार बचा है। ज़्यादा पेस ऑफर नहीं कर रहे, ये सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है सदर्न पंजाब की जानिब से। दूसरे एंड पर उन्होंने नई गेंद जो है वो मिलिट्री मीडियम से कराई। ये देखिए ये मिलिट्री मीडियम में बॉलिंग है, लेकिन यहाँ विकेट मिली है। यहाँ हारने जीतने वाले दोनों को इनाम मिल जाता है जे डॉट सुपर ओवर में। एक बार फिर स्लो बॉल बाउंसर, तो दोनों एंड से रफ्तार नहीं मिल रही और उस पर मुश्किल हो रही है केपी के खिलाड़ियों को गेंद को डिस्पैच करने में। अच्छी बॉलिंग है, स्लो वन करवा रहे हैं लेकिन टाइम नहीं दे रहे कि कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल मुंह के पास करवा रहे हैं आमिर यामीन, तो मुश्किल होती है शॉट खेलना। दोनों ही इस वक्त बैट्समैन ऐसे हैं जो कि मिलके 1 रन बना सके हैं। 7 गेंदें हो गई हैं, आखिरी 7 गेंदों में 1 रन भी नहीं मिला। तो क्या यहाँ पर अच्छा इस ओवर का इख्तिताम कर सकेंगे? पूरा फायदा नहीं उठा सके, गेंद आगे जरूर गिरी थी आमिर अजमत के लिए। तो इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन बन सका, 14 पर 1।
14-1 खैबर पख्तूनख्वा का स्कोर। और ये वो आप देख सकते हैं सड़क है जो हफीज सेंटर से होती हुई आगे मेन मार्केट की तरफ जाती है। हफीज सेंटर मोबाइल की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है लाहौर शहर में। और ये लाइन है शाबा। तो दिन अब डूबने लगा है और ऐसा ही मंजर देखकर किसी ने कहा था कि हुस्न जिस रंग में होता है जहां होता है वो अहले दिल के लिए सरमाया जहां होता है। ये रोक लो। रन नहीं मिल रहे इतनी आसानी के साथ। हालांकि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की टीम है मरीना, इनके बॉलर्स ने सबसे कम विकेटें ली हुई हैं इस टूर्नामेंट में। ये भी एक इनकी नाकामी का सबब रहा है। सादर्न पंजाब ने राधा सबसे कम विकेटें ली हैं। आज 1 विकेट ली, इससे पहले 42 थी। यहीं पे अच्छी बॉलिंग हो रही है और विद स्टंप्स पे अटैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सदर्न पंजाब ने पिच रिपोर्ट मेरी चेक कर ली थी, क्योंकि यही बचने का फायदा है। थोड़ा सा भी इधर उधर गेंद किया, लेंथ छोटी हुई तो फिर रन्स पड़ेंगे। यहाँ इस बार फील्डर हैं लेकिन ये नहीं पहुंच सकेंगे। सलमान अली आगा लॉन्ग ऑन पर थे और बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे लेकिन अपने लिए जगह पैदा की और सामने हिट आउट करने में कामयाब हुए कामरान। अच्छी शॉट थी ये, आगे गिरा हुआ गेंद था और सिर्फ चेक शॉट खेली है इन्होंने। टाइम क्या, क्योंकि नया बॉल था, पेस भी अच्छी थी, ओवर हिट करने नहीं गए। ये रोक लो। तो 43 विकेटें सादर्न पंजाब की हैं इस टूर्नामेंट में। सिंध की सबसे ज़्यादा हैं, उनके बॉलर्स की 57 है, केपी की उनसे भी ज़्यादा है 58। स्किड कर रही है इस वक्त, बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में ही अटैक किया है अली ने और उसका फायदा भी हुआ है। 4 ओवर के बाद 19 पर 1। Well, it's nice and early in the second innings and not much in it at this stage. 4 overs gone, 19 for 1 at KP. 26 for none. Southern Punjab were at the same stage, and Ziaul Haq is into the attack, 26 years of age. He's bowled a couple of magnificent deliveries actually in some early spells that we've seen from him, so I wonder if he's going to pull something out, a rabbit out of the hat again. Well, one delivery that swung back appreciably and slammed back the top of off stump a couple of days ago. Good tidy start, and that's live wire stuff in the inner circle as well. Hello, Baz. Intensity in the field. It's always required, especially in a T20 game. It's the last outing for ATF Southern Punjab, so they want to leave a mark. A bit of glove involved there. Just going to trot through for the single.
One thing that Southern Punjab have had their issues with is the average runs per wicket taken. Now they, before today, have taken 42 wickets, an average of 35, whereas KP, for example, who are, and that's bottom of the list, KP, for example, who are second on the list, 58 wickets, so a lot more wickets for the same number of games, at an average of 21.7. So there's a real difference there, 35 versus 21.7. Chapalti moment. Yeah, just have that moment before everything takes off. It's still quite sedate, this start. Don't smile, girls. That's it. Don't smile. Don't smile. That's it. Well done. Nice and oh, there it is. You couldn't keep it long enough. Serious business. Just behind square. Sharp fielding. No run. KP, by the way, early today, the wickets were being taken a lot more than 21.7. So Southern had the advantage there, and much improved performance when they are batting. So it's a bit of a telltale style, actually, if you look back at their performances, Southern Punjab's performances throughout this edition of the National T20 Cup. That tells the story, I think, as to why they are out of it at this stage, or out of it, I should say, and looking to play spoil sport today and upset the apple cart for KP. But sometimes when you're out of a tournament, it just frees you up. You actually have no pressure and play freely and have nothing to lose in that department, and then it brings out a better performance. Short delivery, hammered away, the work to be done. Nicely tagged. They come back for 2. So it's a pretty tidy over first up. 6 from it, 5 gone, 25 for 1. Just a reminder to create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. Wear your passion, grab a shirt, get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 2021 shirt signed by the Pakistan squad. Deadline is the 15th of October. Not too far away, and 5 lucky winners will be announced through the PCB official portals following the campaign end. Hashtag wear your passion. Cries of catcher. This will be a remarkable catch. It was taken. Oh, he was never settled. He was circling around himself. I think initially, gee, they're hard to take those. You got to. It's really, yeah, exactly right. That's the best description. Just showing that he was going around in circles. He's running back, but he couldn't locate where the ball was, so he had to circle around, complete 360. Didn't get a hand on it. Yeah. He says there's wind. The ball's swirling. He swirled himself. Swirling like all those kites around the place. All the teals. Having fun. Hard down the ground, but not far enough. Soft dismissal. Trying to hit down the ground, no timing on it.
I suspect this hit high on the bat. It made an awful sound on the bat and just scooped it up to Midon. Agha Salman with the catch. And second wicket down. Amir Azmat out for 6 is 26 for 2. Two down, 26 on the board, losing their second wicket, 2 balls into the 6th over, so still in the power play. Farhan has been a really good scorer. Been a pleasure to watch actually in this tournament. One shy of 1,000 runs. He has just bowled that short of length delivery and it kicks off the surface slightly. That's why no timing on it. High up on the bat. Clunk was the sound, so it was going nowhere. Just a bit of perspective as well. Southern Punjab lost their second wicket with 95 on the board. KP have lost their second with 26, so there's work to be done now. Missing some gun players, obviously, we know that, but they're still going to get some points. Evidence of the breeze, and that's why the ball was swirling around. And maybe these guys also, with their hands up in the air, brighter fan of the match, adding to the breeze. I actually think, and I know that yes, there is a little bit of breeze out there, but I mean, you rarely play a game of cricket when there's no breeze. I think he just took off too quickly. He was off before he had a chance to really assess where that catch was coming down. And I said when it went in the air, it would have been a remarkable catch if it was going to be taken, because to take those sort of catches, you've got to be so settled underneath them. Your eyes can't be moving. And if you're trying to catch something over your shoulder 99 times out of 100, your eyes are moving. And the last minute, you have to adjust. Two runs only off his first over and a wicket so far. And it's going to be 3. So that is a top first over. Nope, that's now going to be 4. That's going to annoy him. So 29 for 2 now. Lights are on. Power play is now done. 6 overs are up. That's the signal from the umpire. Normally means introduction of some spinners. As soon as those 6 overs are up, the spin is on. Sulman Ali Agha off spin, spinning back into the right-handers.
Let's have another look at that swirling catch. So it went up. Backward point was off like a rocket. Running, I mean, that's tough. He's sprinting like that. And he went too far. Yes, there was a little bit of wind, but there's no way he's going to get balanced. And he overran it, basically. It's a very, very tough catch to take. And there was no one, he had to go for it. There was no one coming off the boundary towards him that was going to get near that catch. So he had no chance but to go for it. It would have been a screamer, an absolute screamer had he taken it. Swirler. Off breaks. A little bit of turn. Sabzada Farhan is the highest scorer in this national T20. 350 runs. So KPK will look at him to get the ball rolling. He's batted in the middle order. He's batted well. He's smashed the ball out of the ground. Good striking. And he tries it, goes leg side, fielder running back, fielder running in, and the one in the right direction takes the catch. That was a brilliant catch. Elias took an absolute blinder there. It was the right call. That was the important thing. I think the gentleman at one stage thought he was going to be in trouble again, having a look over his shoulder, but no, the call came. And then things were fine. Low down. Good grab. And that is a huge wicket. That's one of the problems, of course, when you're in a rich vein of form. You can't just get out there and dip. You've got to make sure when you're in that sort of form that it really counts. He's now gone for 3. They've lost 3 wickets inside 7 with 32 on the board. Big goal now. Hasn't played too many games. He's playing in his 10th. Strike rate of 126. Running that off the blade. Chases on. And 4 runs. Nicely played. So 7 off the over, but a wicket. 36 for 3. Iftikhar is the next man to come in. Asif Afridi after that, so then we suddenly get into the bowlers as well. So these two guys have got to make sure they get a partnership together. 7 overs gone. What a lovely shot that is. 36 for 3 is not a good look for KP. Spinners have got an option also to try and scoot through these overs pretty quickly. That'll be something that'll be in the back of the captain's mind as well. Try and zip through 2 or 3 overs. Kamran Ghulam with a deft touch. Just tapped it down to third man and it sped away. Quick outfield. A good shot. Well bowled, well bowled, well bowled. Protection. Elias is the man that was on the fence. And it's far easier for someone to come off the fence and take these sort of catches. But he's got to call nice and early, which clearly he did. That's a good grab, really is. Umar Khan has started off his over really well. Left arm spin. Clever bowler.
आगा बैटिंग पे ही हो जाएगा, बैटिंग पे ही. Just a single, so fielding in the deep good, and the required rate has jumped up over 12.5. So Khyber Pakhtunkhwa have to be careful. It just seems as if it's drifting away. Tell you what, if they don't get the 2 points today, they're going to put themselves under a lot of pressure tomorrow. Catch it, आगा हो गया. Tries of catch it. Gone over the top though, and it's gone for 6. पहले ही निकल गया. Yeah, good use of the feet. And that hit was needed. Pressure was building. Kamran Ghulam, adept at playing spin, bottom hand into play. Hits it out of the screws, hits it out of the ground. Important 6. They got a game against Northern tomorrow. That's interesting. Khyber Pakhtunkhwa. Hard down the ground, along the turf this time, and that's gone for 4. That's a good couple of shots to finish the over. 10 off the last 2. Takes that to 13. 8 gone, 49 for 3. उनचास 3 खिलाड़ी आउट. चेज इतना कोई अच्छा नहीं रहा अभी तक. लग रहा है कि सदर्न पंजाब ने कुछ चीजें सीखी हैं, लेकिन शायद थोड़ा लेट. लेकिन अभी तो सीजन शुरू हुआ है. अभी तो T20 की बारी है, फिर 4 डे है, फिर 1 डे कप है. परफॉर्मेंसेस तो बहुत सारी हैं. पाकिस्तान सुपर लीग है. क्रिकेट का जो सीजन है पाकिस्तान का, वो अभी अपने पहले कुछ चंद कदम ले रहा है. ये पिछला ओवर और उसकी आखिरी गेंद. उमर खान की बॉल थी, चार्ज करके 4 हासिल किए. पचास रन मुकम्मल हुए. केपीके की इनिंग्स के अच्छा खासा बड़ा स्कोर ये चेस करें, और QR कोड जस्ट फॉर मेन स्कैन करें और तोहफे जीतें, इनामात जीतें. बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं केपीके. इस वक्त तकरीबन 12.25 रन की इनको औसत दरकार है, और ये बेहतरीन छक्का लगाया इसी औसत को पूरा करने के लिए. एक 2 कदम नीचे और उसको खेल दिया बेहतरीन 6 रन के लिए बैट्समैन ने. ये आइडिया बुरा नहीं है. अगर आप को ऑपोजिशन ने दीवार से लगाया हुआ है तो आप फिर इस को फाइट बैक कीजिए. 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, लेकिन खेल को आप रोक नहीं सकते. किसी बॉक्स में नहीं जा सकते, शेल में नहीं जा सकते. आपको रन तो चाहिए, और अच्छा स्कोर पुट अप किया है आज सदर्न पंजाब ने. 194 का टारगेट है, तो कहीं ना कहीं आपको चांसेस तो लेने हैं. कामरान गुलाम के पास ये एक्सपीरियंस है, और वो ठीक तरह जानते हैं कि क्या करना है. अब देखना यह है कि ये कैच होता है कि नहीं. और ड्रॉप कर दिया और 4 भी दे दिए. यह सदर्न पंजाब का प्रॉब्लम रहा है इस T20 में. अपॉर्चुनिटीज आई हैं और सही वक्त पे उनको ग्रैब नहीं किया है एज अ टीम. जी हाँ, बेहतरीन मौका था विकेट हासिल करने का. आगा सलमान डिसअपॉइंटेड है, नीचे आए, कदमों का इस्तेमाल किया, सही कनेक्शन नहीं हुई और ड्रॉप कर दिया. इंसल्ट टू इंजरी. 62, 3 खिलाड़ी आउट.
132 और चाहिए हैं। ये सिलसिला काफ़ी लंबा चल सकता है, लेकिन पिछले 2 ओवर्स में 26 हासिल किए हैं, जिससे पता चलता है कि अब आप अपना एक्सेलरेटर प्रेस करना चाह रहे हैं, चांस लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो आपने अभी बताया, हाथ से निकली गेंद, और ना सिर्फ गेंद ड्रॉप की, 4 भी हो गया। ये जख्मों पर नरम छिड़क है इनके। इसीलिए मैंने कहा था इंसल्ट टू इंजरी। आपने बड़ा अच्छा ट्रांसलेट कर लिया, मेरी मदद कर दी। उर्दू भी मुझे सीखने का मौका मिला। उसमें नमक ले आया, थोड़ा मिर्च मसाला। आइडिया इनका सही था, पोजीशन में आ गए थे, रिवर्स कप करना चाह रहे थे, लेकिन बात यह है कि जो पोजीशन इनकी होनी चाहिए थी हाथों की, आपस में जुड़े हुए हों, जिस पे ग्रैब कर सकें, वो नहीं कर पाए। थोड़ा प्रेशर भी होता है हाई कैचेस में। आज अपॉर्चुनिटी मिली है खेलने की शिरोन को। शॉट अच्छा है, टाइमिंग है, बीट कर देंगे फील्डर को। अब बाउंड्रीज और चौके और छक्कों की जो थोड़ी बहुत बारिश है वो शुरू हो गई है। अंदाजा लगा लिया है यहाँ दोनों, नबी गुल और गुलाम ने, कि अब मारना है तो अभी मारना है। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी उमर खान की, और उसको बहुत अच्छा खेला लेग साइड पे नबी गुल ने, जो यंग प्लेयर हैं। लेंथ अच्छी रीड की, अक्रॉस गए, बैक इन अक्रॉस, और अच्छी शॉट लगाई। लकी रहे उमर यहाँ, गेंद काफी वाइड था, शॉट भी था, लेंथ में गैप नहीं मिल सका नबी गुल को। एक और अच्छा शॉट, एक और टाइमिंग के साथ शॉट, 4 और हासिल कर लिए। बहुत ही अच्छी हिटिंग कर रहे हैं नबी गुल, और टारगेट कर रहे हैं गैप्स को, जो पॉकेट्स मौजूद हैं डीप में, दोनों तरफ ग्राउंड के। इस वक्त माइंड से खेलते हुए स्पिनर के। जी हाँ, एक दफा फिर क्रीज को अच्छा यूज किया, इम्प्रोवाइज किया, और 4 रन हासिल किए कवर के रीजन में। अच्छे यंग प्लेयर हैं नबी गुल भी। मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी सलाहियत की जो है तमाम तर जौहर दिखाऊं। वाइड होगा ये डिफरेंस है T20 में। जब गेंद लेग स्टंप के बाहर पहले हुआ करती थी तो बैट्समैन जाने देते थे। अब कोई भी खराब गेंद हो, चाहे लेग स्टंप के बाहर हो या बहुत बाहर हो, आउटसाइड ऑफ स्टंप, कोशिश करते हैं कि इस पे 4 हासिल हो। नॉन स्ट्राइकर पे चांस। लेग स्टंप की आप बात कर रहे थे, लेग स्टंप के बाहर जब बॉल होती है तो स्वीप लगाने का अच्छा मौका होता है, और स्वीप पे आपको अगर वहां फील्डर मौजूद ना हो, फाइन खेल दें आप स्वीप को, तो आपको 4 रन यकीनन मिल जाते हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग तैयब ताहिर की। ये यकीनी तौर पे फिर से कुछ नुकसान हो सकता था रन्स की सूरत में। 73 पे 3, 10 ओवर्स। ये आप देख सकते हैं दोनों वर्म्स को। ये नीचे जो वाइट है ये है खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने अभी लगता है 7वें ओवर से कुछ अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला है तो फिर ऊपर आना शुरू है। पहले 7 ओवर में सिर्फ 3 चौके थे, उसके बाद ओवर नंबर 7 से आगे तक 4 चौके और 2 छक्के और लग चुके हैं। ये एक्सेलरेशन आई है। देखिए क्राउड भी एंजॉय कर रहा है यहाँ पर मैच को, और ये फील्डिंग आप देखें कि यहाँ पर अच्छी फील्डिंग तैयब ताहिर की। केपीके को भी आज पता है कि मैच अगर नहीं जीतेंगे तो फिर क्वालिफाइंग में शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि आज अगर जीत जाएंगे तो सीधा फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आज शायद नहीं जीतेंगे तो बलूचिस्तान अच्छा फील करेगा, उनका थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा। बहुत अंदर हो गया, बहुत अंदर हो गया। ये हेड कोच सेंट्रल पंजाब के
इनके पास भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ, क्योंकि अभी 2 मैचेस बाकी हैं इस वक्त बलूचिस्तान के, आज और कल। कल बहुत ही क्लोज मैच हुआ था उनका, अगर जीत जाते तो फिर परेशानी दे देते ये ऊपर के 4 की टीमों को, क्योंकि फिर उनके पास 12 पॉइंट्स तक जाने की जगह थी। अब वो 10 तक स्कोर कर सकते हैं, 6 पे हैं बलूचिस्तान। लेकिन जरूरी है कि वो बाकी बचे दोनों, बाकी मानदा मैचेस दोनों जीतें। पॉइंट्स टेबल ओपन हो जाएगी अगर आज केपीके अपना मैच ना जीत सकें, और दूसरी टीम्स के लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी चांस बन जाएगा और एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है इससे। अच्छा सिंगल, उसके लिए जाते जाते सदन पंजाब को किसी के लिए स्पोर्ट प्ले करना पड़ेगा। स्कोर तो अच्छा है और इस पोजीशन में भी हैं इस वक्त सदन पंजाब के, अगर एक आध विकेट यहां हासिल कर लें तो प्रेशर वापस पूरी तरह से खैबर पख्तूनख्वा पे आ सकता है। विकेट्स लेने के लिए यकीनन उनके जो फील्डर्स हैं उनको उनका साथ देना पड़ेगा, कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। ये जो क्लीशेज हैं ये ऐसे नहीं बनते, इनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो कैचेस वाला जो एक क्लीशे है ये तो ज़बरदस्त है, कैचेस ज़रूर पकड़ने पड़ेंगे इनको। दूसरे के लिए पुश करता हुआ निकल पड़े हैं। अच्छा थ्रो, फ्लैट होता तो मुश्किल होती, लेकिन यहां वो ऐसा ना हुआ। 79, 3 आउट। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, यहाँ पे जो सफ़ेद लाइन है ये है खैबर पख्तूनख्वा की। जब स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी हद तक बैलेंस में है, उसके बाद हाई स्कोरिंग से सदन पंजाब ऊपर गया। इस वक्त क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है, 115 चाहिए 54 गेंदों पे, आप देखिए ग्राफ कैसे नीचे जा रहा है। पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है केपी की इस मैच को अपने हाथ में लेने के लिए। ये नंबर ऑफ ओवर्स आपको नीचे दिख रहे हैं, तो ये प्रेडिक्शन है विन लॉस का। अगर यहाँ से स्कोरिंग और तेज़ हो जाए तो ये नीचे जो वर्म है वाइट वाला, ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा और विन परसेंटेज जो लेफ्ट कॉलम में जा रही है वर्टिकली वो बढ़ती जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, जितना आप समझें। सिकंदर, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो मुझे इसकी कुछ खास समझ नहीं आ रही। मैं क्रिकेट की जो रियलिटीज़ हैं उसको समझती हूँ, विकेटों को, कैचेस को और शॉट्स को। फुल टॉस कर बैठे, रन्स वहां पे फिर हासिल हो जाएंगे। अच्छा कवर अप किया ग्राउंड को डीप स्क्वायर लेग ने। आपने जिक्र किया कि आप विकेट्स और रन्स और शॉट्स को फॉलो करती हैं, इनको देखें स्क्रीन पर हैं। कामरान गुलाम पिछले साल हाई स्कोरर थे कायद आज़म ट्रॉफी में, 4 डे जो होता है, 1249 रन बनाए, विच इज द हाईएस्ट इन वन सीजन एवर किसी भी प्लेयर का। जी हाँ, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। इनका अंडर 19 से इनका करियर फोकस में आया था। और ये 50 रन्स की पार्टनरशिप, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं दोनों यंग प्लेयर्स, कामरान गुलाम और नबी गुल। और 49 रन्स की पार्टनरशिप अभी तक पार्टनरशिप इनकी हो चुकी है दोनों की, और मजीद इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है सिकंदर, क्योंकि जो टारगेट है 194 का वो आसान नहीं है। तो ये दोनों प्लेयर सेट हैं, बेहतर है कि यही आगे कम से कम 3 या 4 ओवर्स मजीद खेलें।
अच्छा शॉट, लेंथ शॉट थी, स्पेस स्लो थी गेंद पर और पूरी तरह से फायदा उठाया इसका यहां नबी गुल ने। इंप्रेसिव खेल रहे हैं क्रिकेट यहां पर नबी गुल। अच्छी शॉट डिसाइड कर लिया था, लेंथ भी मिल गई और उसको पुल कर दिया। शानदार 6 रन्स के लिए। यंग प्लेयर जो अपनी सलाहियत को बैक कर रहे हैं, अपनी हिटिंग एबिलिटी को बैक कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रीड करते हैं लेंथ को, अर्ली रीड करते हैं ये लेंथ को। इस बात का अंदाजा है केपी के बैट्समैन को कि करीबन 12.5 ऑलमोस्ट 13 की एवरेज से रन चाहिए हैं। 2 बड़े ओवर कहीं मिल जाएं 20-22 रन के तो इसको ये फिर अपने काबू में ला सकते हैं। जुनैद खान को बुलाना पड़ेगा कि वो उनको हेल्प कर लें। कल उन्होंने बलूचिस्तान के को एक फंसा हुआ मैच, जीता हुआ मैच अपने ओवर से जिसमें उन्होंने काफ़ी रन दे दिए, 15, उससे हरवा दिया। लेकिन आज वो अच्छे बॉलर हैं, मुझे लगता है आज वो कल की जो उन्होंने गलती की आज उसको सही करेंगे। टॉप एज, ये रन्स काउंट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप चांस ले रहे हैं तो फिर ऐसे शॉट्स आपको जरूर आएंगे, कहीं कैच ड्रॉप होगा, कहीं लकी शॉट। जी हाँ, इसको खेलना चाहते थे वो कवर के ऊपर से, लेकिन एज हुई और विकेट की पीछे थर्ड मैन पे बॉल गई। ये देखिए कवर पे इसको खेलना चाहते थे, बल्कि शायद उसको वो क्रॉस बैट खेल रहे थे तो वो लेग साइड पे इसको खेलना चाहते थे। इनसाइड है जो कि ये 4 रन हुए। जी हाँ, की यही है कि जब अगर आप मारने जा रहे हैं बॉल को तो फिर फुल फोर्स से खेलें ताकि वो जो एजेस हैं वो भी आपको रन्स दिला दें। इतना बाउंस हुआ नहीं, बॉल नजर हटा ली थी थोड़ी देर के लिए नबी गुल ने। 12 ओवर्स हो गए, 92, 3 खिलाड़ी आउट। .78 off 48 balls from Tahir. That's what anchored that 193 for 5 for Southern Punjab. Khyber 92 for 3 now. Need 102 off 48. Good on 37 off 27 balls, and Nabi Gol 33 off 19. So the stand is 60 off 32. So that's good work. They've got to go deeper, these two guys, though. Got to make sure they do the bulk of this chasing down. Still a long way to go. Same time, by the way, just some perspective. Southern Punjab were 105 for 2. Right, Majid now. 3 overs, 1 for 17. I think he's someone you need to just treat as someone who bowls a little bit of in-swing more than anything else. He picked up a wicket early with LBW. He's quick through air and even skids off the wicket. You have to be very quick off your feet, says a batsman. So the pitch is now good. The ball has now got a little bit softer. The seam is no longer proud. So runs should be coming reasonably comfortably, but they've got to play catch up here because they've got to go now 13 runs per over. There was an opportunity for a boundary, but yeah, he's missed it. Just took his eyes off. That'd be Gul's highest score in T20 cricket. Did the right thing there by not looking to work that too square on the leg side. Can be tricky if you play across the line, especially against a bowler like Ali Majid, who likes to just go fast. It relies on skidding the ball onto the batsman.
Good advancing out of the blocks quickly. Hard down to the man at long off. Only the one though. We have 4 so far. This over. Can they turn it to a big one? It's just a brilliant economy rate from Ali Majid at the moment, going at 5.7. Really is amazing. That's a dot ball as well. That's the way to go about it. Keep attacking the stumps. And if a batter makes an error, he'll get the wicket. You can sense that the batsmen are concerned now. They're realizing that every time they don't get the 13 runs or 12 runs as they thought it was before this over, then it's going to escalate quite quickly. So 4 runs over, 4 runs only from 5 balls. And a very good final delivery. What a spell that is. That is quite magnificent. 4 overs, 1 for 22, economy rate of 5.5. Congratulations, great bowling. 13 overs gone, 97 for 3. So there's confirmation of the work that Ali Majid did. Really good work. 13 dot balls as well. What else we got? 1 over for Ziaul Haq. He's going to be a key player. Going at 6s. 1 from Ilyas. Picked up a wicket also and just going at 4. That's good. Skipper at the top as well. Right, Ziaul Haq is back. It was quite expensive the other day. I hope he learned from his mistakes. So he's got a man at long off. Mid off is inside the circle. Fine leg is inside the circle, and third man is back. They're key players for him. Flip that away, backward of square. That's really good advancing off the advertising triangle too. Good anticipation to cut that down to 1. It's got a good partnership, Ghulam and Nabi, but still just keep an eye on that required run rate. It's just above 14. Yeah, just trying to open his arms, Iftikhar. That's not a golf swing. Rate required has now gone to over 14. You can sense something's going to crack here. Hard down the ground. Has that gone for 6? Yep, that's a wonderful shot. That really is superbly played. In the slot and over the boundary. Brings up the 100. Not the right line and length, just allowing to free the hands. Look at that follow through. Right out of the middle of the bat. 72 yards is the hit from the middle of the pitch. So what are we going to add on there? Another 10 yards, 8 yards. That's an 80-yard hit down the ground to get over the advertising triangle. That's a pretty good hit. Straight at the fielder, only 1. Maybe Ziaul Haq could try just coming around the wicket and try to hit that Yorker length, not giving any room. From this angle, it feels to be a little bit easier for batters. It's a lovely shot because it didn't try and force the issue. It was just strong hit, well timed. Disappointment from the bowler. He's got to come back and finish this over. Oh, he's just got that past the keeper. There was an edge. Did it come off the body as well? It wasn't too far away from Azam Khan. Wasn't a bad delivery. Was well directed, but unlucky for Ziaul Haq. It went for runs. Do
do think a keeper should be making more ground to his left than that, to be honest. They got a left-arm bowler, but you've still got to make sure you can scamper down that leg side and use your feet. Yeah, Azam could have done better. They need to break this partnership. You have to pull out something special. That could have been a chance. Yeah, just trying to troll towards leg side, not much of an effort. Straight to the fielder at long on, so it's only going to be the single, but it's a very good over. Nicely played. 14 runs off that over. That's going to help. Nelson on the board. 1-1-1 for 3. Just a quick look again at our broadcasters. I'm going to draw your attention to the PCB YouTube channel and the PCB Facebook page. Those pictures are high definition, HD, crystal clear, and of course that's going through Pakistan and also the rest of the world, both of those. So it's a wonderful opportunity for the rest of the world to log in on their phone, their laptop, their tablets, and see what's going on with this national T20 Cup in Pakistan. I bet the national players are watching this back at the hotel. Hard back of the bowler, no run. He's been very economical, Amir Yamin, today. Good change of pace, good change of length as well. But this is an important over. They did get a big over, but now Southern Punjab needs to break this partnership. Yeah, this is an over number 15. If they get some good runs off this over, this is the over that can really kick him into that last 5. Amir Yamin's numbers are great, going at 6.6 at the moment. 1 ball into his final over. I don't know how that's got on the stumps, but it has. A wicket has fallen, and he can't believe it either, by the looks of things. Wanted to grab, but then he picked that it was way outside off stump. Went the other way, but Destiny had some other plans. Let's have a look at that line. Yeah, seems like safe. So once again, Amir Yamin to the rescue. Off the back of the bat, I think, is the answer I was looking for. But it is an important wicket at a crucial time. Now it's going to need some serious batting for some of the middle to lower batsmen in the lineup. 46 off 33, played nicely, Gulam. 111 for 4. Nelson strikes. Right, 1-1-1 for 4. Iftikhar is someone who's a really important cog in this lineup for Khyber Pakhtunkhwa. He has got some serious work to do here. He's coming in at number 6, so he's going to have to bat right at the very end of this innings. Oh, straight away he's having a go. He's teed off. That has gone for 6. What a wonderful shot first up. The warm-up in the dugout worked. First ball he faced, he smashed it down the ground.
big guy. He's not going to wait for it. Magnificent bat playing right through the ball. Look at that. Heading it hard. Beautifully played. Right, so now we've got a wicket off the previous ball, a dot ball the first, and then 6 off that one. Slow delivery. Good comeback from Amir Yamin. Iftikhar played exceptionally well the other day, 55, taking his team across the line. Today, same scenario, but a bit difficult. A hockey player might have handled it better. Could be one of those what happened next sort of questions. Like, how did that ball end up there? Off the back of the bat, that's how. Oh, that's a crack too. Has that gone all the way? Yes, it has. This time it's Nabi Gul. He wants to join the party. Another big hit. Just walking towards the off stump. And bang. Just a flick of wrist. He knew that. He loved it. That's turning out to be a big over. So it's 13 off 5 balls. And yes, it is a big over, but it's what they have to do. Anything less than that, suddenly they'll be looking at 15 or 16. Nabi Gul's on 49 off 28. Strike rate of 175. 3 sixes, that is third, and 4 fours. It's been a top knock. Slicing that back with a square. Bit of a knock on and 4 runs, so it brings up the 50 with a boundary in the end. Here goes to 53. That's a big over now. 17 runs from it. Beautifully played. It looks like it's a no ball perhaps. We'll have to have a look and see if it is. Yep, and it's going to be a free hit. Oh, that's going to hurt. First the no ball. Amir Yamin just overstepping. And then the slide was in from the fielder, but it still went for the boundary. Right, what can they get off this? Free hit. Crack. Has it gone all the way? No, it hasn't. Just trotting through for 1. So he doesn't take full toll of that free hit, but still it's 19 off the over. 15 gone now, 130 for 4. As I look back at the work that KP have done, Nabi Gul 54 not out off 30 balls. That's brilliant. Gullam 46 off 33, really good as well. So 5 overs to go, 130 for 4, and what a good time for a drop of Tapalti. All lined up in a row, deep in conversation as well. The gentleman in the middle, a couple of nods around the place as well. What's the worms? They've met. They weren't mates. Had a bit of a chat initially. They departed. They tried another conversation. That didn't work. They departed again, and now they're going to try again. But they're in a bit of a knot by the looks of things. So it's all locked away. 136 for 3 was where Southern Punjab were. Six bowlers already being used by Southern Punjab. We'll have to see who will come for the rescue. That's the equation.
There's an edge. Catch is taken. And another wicket has gone down. Mohammad Ilyas it is. First ball, Nabi wanted to smash it, but all he did was just find a tickle. And catch was taken by Azam. Yeah, just wanted to go down the ground, opening his leg. With some relief for Southern Punjab. It's the end of a very good performance from Nabi Gul, it's got to be said. 54 off 31, he really did play beautifully. 3 sixes and 5 fours. He'll be so disappointed he hasn't kicked on though. These are the crucial overs. Needed to go just a little bit deeper at that rate. Seriously good spin bowler. He's got some work to do with the bat now. Strike rate is very healthy, 142. Best of 54. He can clearly give the ball a good nudge. Just the 150 throughout his career. Seen plenty happen in the years he's been involved in the game. 64 required, 29 balls, need to go at 13, just over 13 of the over. Sliding across. Wild swing from Asif Afridi. We have seen him change the game in just an over. He's out here because of this. It was a brilliant innings. But just when he wanted to kick it off, he had to take the walk. Yeah, he knows that he hasn't finished the job, but still a brilliant knock. To be just a little bit careful here that Afridi doesn't slice one just behind square on the offside. Ilyas is going to be bowling across him, I presume. Looking to change the field now, so he's asking the man at deep back with square leg to come in, and mid off is gone back to long off. If he's bowling tight on the body, that's going to be okay. If he gives him any width outside off stump, it might go back at a square. Gets a little bit too much bat on it and it goes bang on square. Had it gone, I guess, 20 yards to that fielder's right, he would have been in trouble if it gone with any speed. Probably they will keep that line of attack. He's very strong down the ground. But you have to be careful just offering that width. It's hard to contain in that area. Ilyas clearly couldn't decide on a number. Top over so far. Halfway through, a wicket and just the 1 run. He'll be happier, I'm sure, bowling to the right-hander. Not an easy ball to take, that one, for Azam Khan. I guess it did surprise Iftikhar. Otherwise, that would have been across the boundary. Got away with it, Ilyas. So he's got his own issues here with, if he's looking to bowl the line outside off stump, the third man is inside the circle. He's going to have to bowl fairly tight on the stumps. To full toss, cries of catch it. Is it going to be taken? It's going to be on the bounce, and they can come back for 2 quite comfortably in the end. At times it's not easy to put away full tosses on that height. There was a chance, but lucky enough for Iftikhar, it was in no man's land. The other option that Ilyas has got is to bowl with pace off, with
third man inside the circle and also fine leg inside the circle, both long off and long on back. They're the two men inside the circle, either side of Azam Khan, either side of the sponsors' logos, if you like. Can he take the pace off effectively or not? Slices that away down to man behind point on the fence, so that's well controlled. And it's also a very good over, a wicket, and just conceded 4. 16 gone, 134 for 5 now. बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। 15 की औसत दरकार है आखिरी 4 ओवर्स में, और ये आने वाला मैच है। बलूचिस्तान की टीम को ये मैच जीतना ज़रूरी है, और अच्छे रन रेट से भी आखिरी दोनों मैचों में फतूहात हासिल करना होंगी बलूचिस्तान को, अगर उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनानी। केपी की टीम अगर हार भी जाती है तो उनकी जो नेट रन रेट है वो दीगर टीमों से बेहतर है, इसलिए उनको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ कम मार्जिन से हारना। उनकी फिक्र बढ़ सकती है अगर बलूचिस्तान अपने बाकी 2 मैचेस जीत जाए, तो उस सिचुएशन में 10 पॉइंट हो जाएंगे बलूचिस्तान के, और ये अभी 10 पर है। हारने के बाद नेट रन रेट नीचे आएगा, तो ये बड़ी अभी इवन स्टीवन सिचुएशन सी है। फिलहाल नॉर्दर्न ने क्वालिफाई कर लिया है, जो कल जीते थे। बड़ा क्लोज मैच था, तो इसमें नेट रन रेट कम नहीं हुआ है बलूचिस्तान का इतना। बहुत जोर से हिट करने के लिए गए, लेकिन आखिर में शॉट को एग्जीक्यूट कर नहीं सके इफ्तिखार अहमद। उनके साथ आसिफ आफरीदी हैं, उनमें भी हिटिंग करने की अहलियत है। ये आप देख सकते हैं, जो केपी की रन बनाने की औसत है, नेट रन रेट वो ज़्यादा है सेंट्रल पंजाब से भी, सिंध और नॉर्दर्न से भी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बलूचिस्तान अगर दोनों मैचेस जीता तो जाहिर है कि उसकी नेट रन रेट बेहतर होगी, 4 पॉइंट्स भी मिलेंगे। बलूचिस्तान अपना अगला मैच सेंट्रल पंजाब से खेलने जा रहा है इसके बाद, तो वो एक इम्पोर्टेंट मैच होगा, और बलूचिस्तान यहां देखना चाहेगा केपी की हार, क्योंकि उससे उनका सिलसिला चलता रहेगा सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन का। तो सिकंदर, अगर बलूचिस्तान की टीम जो है आज पंजाब को और कल सिंध को हरा देती है, तो फिर जाहिर है बलूचिस्तान की नेट रन रेट बेहतर होगी, और ये जो दोनों टीमें हैं पंजाब और सिंध, इनकी नेट रन रेट हारने की सूरत में वो कम होगी, तो इसलिए वो रहेंगे कंटेंशन में। और यहाँ ये गेंद लगी है स्टंप्स को बेस में जाकर, लेकिन ये बेल्स नहीं उखड़ी, यॉक हो गए थे इफ्तिखार अहमद। बिल्कुल ब्लॉक होल में था, अच्छा निकाला बॉल। देखिए, अगर यहाँ पे केपी हार जाता है, एक मैच और है केपी का, और अगर वहां भी हार होती है नेट रन रेट उनका भी नीचे आएगा, तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा। गेंद रोल होके स्टंप्स को लगा, लेकिन बेल्स को कुछ नहीं हुआ। तो अभी जो सिवाय एटीएफ सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न के, जिनका फैसला हो चुका है, बाकी मानदार जो 4 टीमें हैं वो अभी भी लड़ रही हैं। फुल टॉस, फील्डर हैं, लेकिन आखिर में ये देखते रह जाएंगे। कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद ऊपर थी। तैयब ताहिर के फुल टॉस पर बहुत जोर से हिट करने के लिए गए। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा शायद ही कमर से ऊपर हो, लेकिन ऐसा नहीं था, रेंज में थी इफ्तिखार के। तैयब सिर्फ इसको देख सकते थे अपने ऊपर से जाते हुए। जोरदार हिट लगाई, हाथ भी लगा था, लेकिन गेंद खेल से बाहर जा चुकी थी। 132 की ये गेंद थी, जिस पे टाइम मिल गया इफ्तिखार को।
इफ्तिखार अहमद की जो बैटिंग औसत है, जब इनकी टीम रन चेस कर रही हो तो वो बढ़ जाती है। वाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने मुताद्दिद मैचेस जितवाए। इस बार रफ्तार को सही तरह से रीड नहीं कर सके। ओवर खत्म हुआ ज़ियाउल हक का, जिसमें बने 9, 142 पे 5। ये लाहौर की मेट्रो बस है, आप देख सकते हैं। ये जा रही है अपने सफ़र पर। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर होते हैं। ये आ रही है, वो जा रही थी। बिल्कुल गद्दाफी स्टेडियम का ये गेट है, बल्कि सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम का नहीं है ये बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ स्पोर्ट्स की, सबका ही यही दरवाज़ा है। अच्छी बॉलिंग की है। पिछले ओवर में भी हमने यॉर्कर लेंथ पर गेंदें देखी थी, अंपायर ने वाइड करार दिया। खुश नहीं है इस फैसले से। ये देखिए कप्तान भी और साथ साथ मोहम्मद इलियास भी। एंगल क्रॉस किया है ये बॉल और राउंड द विकेट आए हैं। ये खासा गेंद जो है वो रीच से बाहर था। अंपायर ने ऐसा फील किया कि ये गेंद वाइड रहेगी। लेकिन बॉलर का जो एतराज़ था वो ये था कि बैट्समैन क्योंकि आगे बढ़ रहे थे, ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे थे शफल करते हुए, ऐसे में कई बार जो है वो बॉलर को मार्जिन मिलता है। इसे फुल टॉस बनाकर खेल दिया खूबसूरती के साथ। यॉर्कर की उम्मीद कर रहे थे और अपना बल्ला गेंद तले लाने में कामयाब हुए इफ्तिखार अहमद। थोड़ा सा रिलैक्स लग रहे हैं यहाँ बॉलर्स, यॉर्कर कराना चाह रहे हैं। पिछले कोई 4-5 गेंदों में 2 फुल टॉस दिए हैं और ये जो शॉट्स पड़ रहे हैं, बेशक केपी गेम ना जीत पाए, लेकिन बलूचिस्तान को मजा नहीं आ रहा होगा ये देख के, क्योंकि नेट रन रेट में कमी चाहते हैं वो। सभी लोगों की नजरें जुड़ी हुई हैं इस खेल से। ये खत्म कहाँ होता है। 46 रन चाहिए 17 गेंदों पर। इस बार हवा में खेला, फील्डर वहां पर तैनात हैं। मोइनुद्दीन लेट उनने रिएक्ट किया। काफी देर तक गेंद हवा में रही थी, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री से लगे हुए खड़े थे मोइन। जी हाँ, दौड़ के आगे तो आए थे, शायद उनका प्लान था कि डाइव करेंगे आगे। टाइमिंग सही हो नहीं सकी उनके गेंद तक पहुंचने की, तो उन्होंने पहले बाउंस पे ही लेना बेहतर समझा। फौरन अबॉर्ट कर दिया अपना वो जो प्लान था, और इस पे इलियास खुश नहीं। इनको कैच लेने पड़ेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको बनाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज। ये जो हाफ चांसेस होते हैं आपके पास है, 45 चाहिए हैं 16 गेंदों पे, आप चांस ले सकते हैं। बेशक गेंद हाथ में ना आए कैच के लिए, विकेट्स चाहिए हैं। इस बार गेंद जो है ये ऑफ ब्रेक होकर गई विकेट कीपर की तरफ। ये दोनों ही अच्छे स्ट्राइकर हैं, खासतौर पर इफ्तिखार अहमद, जिनकी जो औसत है ये कामयाब रन चेज में वो 43 की हो जाती है। इफ्तिखार अहमद जब भी 40 या उससे ज़्यादा रन बनाते हैं रन चेज में, तो 71% उनकी टीम जीत जाती है मैचेस। अगर बैटिंग पहले करते हैं तो उनकी 26 की औसत होती है, रन चेज में 43 हो जाती है औसत। 17 रन का फर्क है। इस बार तो एतराज नहीं होना चाहिए इलियास को वाइड पे। साथ ही साथ रन भी भागा है। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ इफ्तिखार की कॉल थी, तो वाइड के साथ सिंगल भी हासिल हो गया। 17 चाहिए हैं अब हर ओवर में।
तीसरी टेस्ट सेंचुरी सिर्फ 25 गेंदों पर बनी, लेकिन जो शुरू के ओवर से उसमें जारहाना बैटिंग नहीं कर सके क्योंकि विकेटें गिर गई थी खैबर की। 32 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, इसलिए मुश्किल हुई। नबी और कामरान ने अच्छी पार्टनरशिप की। इफ्तिखार अहमद आज देर से बैटिंग करने के लिए आए, ज़्यादातर 5वें नंबर पर खेल रहे थे। आज उन्होंने 6ठे नंबर का इंतखाब किया दूसरों को मौका देने की खातिर। और फुल टॉस, विकेट कीपर ये कैच ले लेंगे। जहां नीचे आए आजम खान और गेंद को उन्होंने लो कलेक्ट कर लिया। मोहम्मद इलियास बिल आखिर आउट करने में कामयाब हुए। इससे पहले मोइनुद्दीन ने लेट रिएक्ट किया था एक्स्ट्रा कवर पर। क्या ये वेस्ट हाइट की नो बॉल तो नहीं थी? टीवी अंपायर से रुजू किया गया है। लग रहा था कि गेंद काफी ऊंची है और थोड़ा सा एहतजाज भी किया था इफ्तिखार ने। अंपायर ने ऑलरेडी उसको ऊपर रेफर कर दिया था। ये लग रहा है कि गेंद काफी जो है वो हाइट पर थी। जिसे आप कहते हैं ना कि गेंद जो थोड़ा बैट्समैन के लिए टफ के अलावा डेंजरस भी हो जाती है, वो जो है अंपायर नो बॉल करार देता है। हाँ, ये अगर नॉर्मल पोजीशन में होते हैं तो फिर देखा जाता है कि गेंद आपकी कमर से ऊपर है तो नो बॉल दी जाएगी। और यहाँ टीवी अंपायर जो है नो बॉल शायद उन्होंने करार दे दी है। जी हाँ, क्योंकि ये पहले जरा से झुके हुए थे, नॉर्मल पोजीशन में नहीं थे जिस वक्त इनका बल्ला आ रहा है गेंद की तरफ। फिर से देख लेते हैं एक बार अगर आप कह रहे हैं, लेकिन अंपायर का फैसला अटल है। ये गेंद जो है बीमार होता है, अच्छा खासा हाइट पे था और इलियास का एहतजाज है कि ये नो बॉल कैसे है, लेकिन अंपायर के पास बेहतर नज़र है और उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो मानना होगा फील्डिंग साइड को। तो आखिरी गेंद उनको फिर से करनी होगी जो अभी की थी उन्होंने। और ना सिर्फ ये बल्कि वही जो बात पहले भी जख्मों में नमक छिड़कने वाली बात है, ये फ्री हिट भी है। तो अब इस पे आउट अगर करना है तो रन आउट कर सकते हैं सिर्फ। एक एडवांटेज ये है कि अब इस वक्त आसिफ आफरीदी स्ट्राइक पर हैं क्योंकि क्रॉस कर गए थे उस कैच के टाइम पे। ये शोजेब रजा हैं जिन्होंने ये फ्री हिट करार दी है नो बॉल के बाद। लॉन्ग ऑन पर उमर खान को भेज दिया गया। डीप मिड विकेट पर मोइनुद्दीन है। यही दो फील्डर हैं ऑन साइड में, या तो यॉर्कर कर सकते हैं या स्लो डिलीवरी। फाइन लेग को आगे लाया गया, स्क्वायर लेग को भी। थर्ड मैन के फील्डर पीछे और कवर भी। अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी लाइन लेफ्ट हैंडर के लिए। लग थोड़ा सा ये साथ दे गई इलियास का कि स्ट्राइक चेंज हो गई थी जब वो कैच लिया गया नो बॉल पे। तो आसिफ आफरीदी सामने थे। कभी कभार एहतजाज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, गेम का जो मोमेंट होता है उसमें थोड़े बह जाते हैं प्लेयर्स। फिर अंपायर को उनको याद दिलाना पड़ता है कि गेम पे फोकस किया जाए। जी, और बेहतर भी यही है कि हमने देखा है कई बार इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने देखे गए इन मामलात में। ये वाइड होगी तो बेहतर है कि इलियास अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दें। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गुस्से में बॉलिंग कर रहे हैं और एंगल अक्रॉस कर रहे हैं। ये आइडिया तो सही है, दूर रखना चाहते हैं बल्ले से गेंद, लेकिन ये तीसरा वाइड है इस ओवर में। एक नो बॉल भी हो चुकी है। थोड़ा सा सही है यहाँ पे कप्तान बात करते हुए अपने बॉलर से, ये मैच हम जीते हुए हैं, हमें कोई एक ऐसा ओवर नहीं देना है जिसमें कोई 20-22 रन मिल जाए ऑपोजिशन को। इस बार वाइड यॉर्कर आउट। थ्रो डायरेक्ट क्या लगी है? अगर तो लगी है तो यकीनी तौर पर ये पीछे रह जाएंगे। इलियास का यही ख्याल है। आमिर यामीन ने गेंद को उठा फेंका था और वो आउट करार दे रहे हैं आसिफ आफरीदी को। देखना ये कि हाथ तो नहीं लगा पहले,
बॉल से पहले हाथ ना लगा हो स्टंप्स पर। अगर तो बॉल लगी है तो आउट है, ये तो पक्का है। यहाँ क्योंकि ये गेंद जो थी खुद बॉलर के हाथ नहीं लगी थी और ज़रा से डबल माइंडेड थे कि पहले गेंद को पकड़े। ये देखिए हाथ नहीं, ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि स्टंप पीछे की तरफ आ रहा है। यहाँ तो इसका मतलब है गेंद लगी है, क्योंकि अगर ये हाथ लगता तो जो ये स्टंप है ये दूसरी तरफ को उखड़ती। अच्छा, तो यहाँ मेरा ख्याल है फैसला ये आ जाएगा बैट्समैन के खिलाफ। जी हाँ, वो बॉल को पकड़ ही नहीं पाए दूर दूर तक, ना ही उनका हाथ बॉल के पास था। डायरेक्ट हिट लगी है और ये गालिबन आउट दिया जाएगा। तो अभी भी शोजेब रजा देखना चाहते हैं, मुतमिन नहीं है। क्या ये पहले ये कोहनी लग गई थी? हाथ दूर है तो आउट करार दिया जाएगा। यहाँ ऐसा ही लगता है आसिफ अफरीदी को आउट दे दिया अंपायर ने और ये सही फैसला है शोजेब रजा का। क्रीज से बाहर था और गेंद लगी थी जाकर स्टंप्स को, इसमें कोई शक नहीं रह गया था। आसिफ अफरीदी रन आउट हुए 2 पर, 153 पर 6। एक 194 की ताक में केपी इस वक्त है 153 पर। अभी भी 41 चाहिए हैं 13 गेंदों पे। एक गेंद बाकी इस ओवर की। खासा लंबा हुआ है ये ओवर, 3 वाइड, एक नो बॉल, फिर एक विकेट रन आउट में। फुल टॉस को खेला है, मिड ऑफ के फील्डर आ गए हैं गेंद के नीचे और ये कैच होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर क्या ये फिर से तो नो बॉल नहीं थी? इफ्तिखार अहमद का यही ख्याल है, उनका ख्याल है कि हाई फुल टॉस जो थी इसको नो बॉल दिया जाना चाहिए। टीवी अंपायर से फिर पूछा जा रहा है, ये भी 50-50 लगता है। यहाँ तो नो बॉल निकली है फिर से। मोहम्मद इलियास जब यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं अक्सर गेंद जल्दी निकल जाती है। 10 गेंदें कर चुके हैं इलियास अभी तक, जिसमें 2 नो बॉल 3 वाइड शामिल हैं और अभी तक ये ओवर जो है वो अपने ख़िताम को नहीं पहुंच रहा। 12 रन इसमें आ चुके हैं, जिसमें से 4 एक्स्ट्रास के हैं, 2 वेस्ट हाइट नो बॉल्स, फिर 3 वाइड। ये सही फैसला भी है। 2 बार कैच आउट हुए हैं लेकिन वो आउट नहीं, नो बॉल थे। अब ये फ्री हिट है और नियाज खान स्ट्राइक पर है। दोनों बार फ्री हिट इफ्तिखार को नहीं मिली। या हर गेंद पर यहाँ से 3 रन चाहिए होंगे। ये नियाज खान हैं जो आज सीम बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। बेहतर ये होगा कि इस गेंद पर ये 4 रन बनाएं या कम से कम 2 रन बनाएं। स्ट्राइक इफ्तिखार के पास रहे और इस बार गेंद को नहीं कलेक्ट कर सके। ये मौका था कैच आउट करने का जो कि अली ने छोड़ दिया। 155 पे 6।
बारह गेंदों में 39 रन की जरूरत है। इस मैच में तैयब ताहिर ने बड़ी उम्दा बैटिंग की और नबी गुल ने अच्छी इनिंग्स खेली। और पिछला जो ओवर था ये तकरीबन 11.5 मिनट से भी ज़्यादा वक्त तक जारी रहा। तकरीबन 12 मिनट मोहम्मद इलियास ने लिए इस ओवर को मुकम्मल करने में। इसमें एक विकेट भी गिरी। आमिर यामीन ने डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट किया आसिफ आफरीदी को। इसमें भी खासा वक्त लगा क्योंकि एक ही वक्त में लगता था कि गेंद और कोहनी आ रहे हैं स्टंप्स की तरफ। यॉर्कर से आगाज किया, इफ्तिखार किया, वापस लौट जाएंगे, नहीं पहुंच गए बाउंड्री पर फील्डर। इफ्तिखार भी बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि चेहरे पे वो कोई इस किस्म की परेशानी नहीं है कि हमें अभी भी 39 चाहिए हैं। जो पोजीशन उनकी टूर्नामेंट में है एज अ टीम, उससे काफ़ी हद तक उनको लगता है कि ये हार भी उनको तंग नहीं करेगी। लेकिन ये सोच शायद गलत हो। स्ट्राइक इनके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रखना भी चाहेंगे। इनफैक्ट नियाज खान के पास स्ट्राइक है। शॉर्ट गेंदों को ये खेलना इतना आसान नहीं रहा है इस पिच पर। काफ़ी कद्दावर हैं ज़ियाउल हक, जिनके लिए टूर्नामेंट खासा बेहतर रहा। लेकिन सदर्न पंजाब की टीम को आगे चलकर सोचना होगा अपने बॉलिंग अटैक के मुतालिक, इसमें क्या तब्दीलियां लाना है कायदे आज़म ट्रॉफी में ताकि कारकर्दगी बेहतर हो। पहले राहत अली, मोहम्मद इरफान होते थे। ये वाइड गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग की आजम खान ने। कलाबाज आजम खान। 12वां वाइड बॉल था इस इनिंग का। ये 12 वाइड, 3 नो बॉल, 1 लेग बाय, 16 दे चुके हैं अभी तक सदर्न पंजाब। अठारह 18.9 की औसत दरकार है यहां से। और स्लोअर वन थी, पहले हिट करने के लिए चले गए नियाज खान। 1 रन और स्ट्राइक अगले ओवर के लिए। तो 18 ओवर्स 18.1 ओवर्स के बाद 154 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं। इफ्तिखार अभी भी मौजूद हैं। क्या उनमें इतनी सलाहियत है कि वो ये बाकी मादा 40 रन को बना सकें? माज खान, अच्छा खेला, इस बार गैप में खेला है। दूसरे रन का मौका यहां पर फील्डर ने नहीं दिया। निहाज बहुत ही आगे निकल गए थे। हालांकि इफ्तिखार को कोशिश करनी चाहिए थी यहां स्ट्राइक पर वापस आने की। जी हाँ, आइडिया तो यही था क्योंकि अब 27 रन फी ओवर चाहिए हैं। लेकिन मैंने कहा आपसे कि वही लग रहा है कि इस वक्त कोई खास जल्दी नजर नहीं आ रही इफ्तिखार की, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है। सीधा शॉट, 4। या टाइम किया, प्लेसमेंट बड़ी उम्दा थी। इस बार गेंद आगे गिरी और इसी की तवक्को कर रहे थे, सिर्फ बल्ला सीधा किया बिल्कुल गैप की डायरेक्शन में नौजवान नियाज खान ने। सही आइडिया था नियाज के लिए, मिड ऑफ सर्कल में था और सीधा खेल के बीट करने में कामयाब हुए से। 32 चाहिए है 7 पर। स्लोअर बॉल और इसको डिग आउट कर लिया। 2 तो मिलते ही हैं और दूसरे के लिए वापस भी आ जाएंगे ताकि स्ट्राइक भी इफ्तिखार के पास रहे। इसके साथ ही 164, 6 खिलाड़ी आउट।
सदर्न पंजाब ने 193 का आज बड़ा स्कोर बनाया और खैबर पख्तूनख्वा की टीम ये पीछे रह गई है। अब आखिरी ओवर में 30 रन की ज़रूरत है और अगर बहुत ही गैर मामूली यहाँ सूरत हाल नहीं देखने को मिलती तो फिर सदर्न पंजाब ये मैच जीत लेगी। ये उनका आखिरी मुकाबला है चैंपियनशिप में। ये पहले तो इनकी बैटिंग जब चलती थी तो शाम तक जाती थी, लेकिन आज शाम तक ही गई है केपी की बैटिंग। इतनी ही काफ़ी है उनको, यहाँ तक भी उनको सुकून लग रहा है। देखिए कितना चेहरे पे सुकून है इफ्तिखार के। कह रहे हैं 30 रन 5 गेंदे मसला ही नहीं, 5 छक्के, और हो सकता है कि उस सिलसिले का पहला अब हो। फुल टॉस, फील्डर आ रहे हैं लेकिन इस गेंद को क्या रोकने में कामयाब हो गए। उमर खान गेंद के बाएं हाथ की तरफ थी, जो कि जाहिर है कि उनका बॉलिंग आर्म है, उनका थ्रो करने का आर्म है, इसीलिए ही ये आखिर में रोकने में कामयाब हो गए हैं। चाहिए अच्छी फील्डिंग शुमार की जाएगी। उनकी मदद को पहुंच गए थे मोइनुद्दीन भी। यहाँ गेंद टकराई नहीं है इस सहसर से। जी हाँ, उनका स्ट्रॉन्ग आर्म है, बॉलिंग आर्म है, और आइडिया भी अच्छा था। एयरबॉर्न थे जब उन्होंने इस बॉल को धक्का दिया वापस प्लेइंग फील्ड में, और पैर में फील्ड्स करते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अब आप मेक श्योर करें कि जब गेंद आपका साथी प्लेइंग फील्ड में फेंके तो आप उसको कलेक्ट करके रिलीज करें। हाँ, उठाया इसे, ये फलक शिगाब। इफ्तिखार अहमद ने अपना तीसरा छक्का लगाया। बज़ाहिर ये मामला टू लेट वाला है, लेकिन अभी भी फाइट करने में लगे हुए हैं इफ्तिखार अहमद। हालांकि पानी जो है हो गया है सर से ऊंचा। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है। पिछले ओवर में 2 नो बॉल और 3 वाइड हुए थे, शायद कहीं मौका लग जाए, लेकिन अब सूरत हाल तो पूरी तरह से फेवर में है सदर्न पंजाब के। जाते जाते अपने 2 पॉइंट्स लेते जाएं खैबर पख्तूनख्वा से। हाँ, तो एक सवाल यहाँ सिकंदर ये उठ सकता है कि जब ये 3 गेंदों में 22 रन चाहिए और इलियास फाजिल रन दे रहे हैं, तो ये कम रन अप से क्यों नहीं बॉलिंग कर लेते इस वक्त? इसलिए क्योंकि विकेट भी चाहिए उनको। अपने अगेंस्ट क्यों डालना चाहेंगे 3 और छक्के, चाहे वो जीते ना जीते अपने नाम के आगे। लेकिन टीम तो जीत जाएगी, वो यकीनी हो जाएगी। इस सिलसिले में आपको बात करनी चाहिए मैनेजमेंट से कि ये आप स्पिनर बना दें फास्ट बॉलर्स को आखिरी 2 बॉलों के लिए। लेकिन देखिए, आखिरी जो चीज़ है वो तो टीम को जीत ही चाहिए होती है। ये तो चाहेंगे कि ये कम रनअप से बॉलिंग भी करें और ये इजाफी गेंदे भी करें। वो सब तो ठीक है, मैं हैरान हूं कि आप जल्दी में क्यों हैं। वाइड बॉल और 4। देखिए, ये आपके मैं कह रहा था कि अभी भी कुछ हो सकता है यहां पर। 5 हासिल हो जाएंगे। यही तो मेरा पॉइंट था कि जब 3 गेंदों में 22 रन की ज़रूरत है, आपको 3 छक्के भी अगर लग जाते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं, वक्त भी बचत। नहीं, असल चीज वक्त है, आपको जल्दी है किसी चीज की। देखें, सदर्न पंजाब और केपी दोनों खेलने आए हुए हैं, और जिस तरह वो खेलते हैं वो ज्यादा बेहतर है, वही देखते हैं। शॉट खेला हवा में, लेकिन फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब हुए। अच्छी फील्डिंग देखने में आई शामून की जानिब से। 1 गेंद 16 रन, तो जाते जाते 2 पॉइंट्स ले लिए। 80 सदर्न पंजाब ने ATF सदर्न पंजाब का ये सिलसिला यहाँ इस साल का नेशनल T20 भी यहाँ अपने अख्ताम को पहुंचेगा। यही पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम थी।
और इसे खेलने में कामयाब हुए। 4 रन जरूर मिल जाएंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की टीम ये मैच हार गई है और यहाँ 11 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है केपी को एटीएफ सदर्न पंजाब के हाथों। आज अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद इलियास ने मजमूई तौर पर, और आमिर यामीन ने अपने बॉलर्स का बेहतर इस्तेमाल भी किया, लेकिन इस जीत की जो बुनियाद थी वो तैयब ताहिर ने रखी थी। उन्होंने बड़ी उम्दा निस्फ सेंचुरी बनाई, जिम्मेदाराना अंदाज में वो खेलते रहे। दीगर खिलाड़ियों ने भी उनका अच्छा साथ दिया। ज़ियाउल हक ने अच्छा स्पेल किया। आजम खान ने भी 25 रन की जारहाना इनिंग्स खेली एक ऐसे वक्त पर जब टीम को ज़रूरत थी इनिंग्स को उठान की। ये रहा चेज आज खैबर पख्तूनख्वा का। 194 चाहिए थे जीतने को, बना सके 182, जिसमें 46 कामरान गुलाम के हैं और निस्फ सेंचुरी बनाई नबी गुल ने। उम्दा बैटिंग की, बड़ा अच्छा लगा उनको खेलते हुए देखकर, बड़े अच्छे शॉट्स लगे। इफ्तिखार नॉट आउट रहे 33 पर और इस तरह से 182 ही हो सका 20 ओवर में। ये आप देख सकते हैं 6 बॉलर्स को आजमाया गया। आमिर यामीन महंगे रहे, लेकिन उनने एक खिलाड़ी को आउट किया और अली अमजद ने बड़ा अच्छा स्पेल किया। 13 डॉट बॉल्स, 22 रन्स, 4 विकेट उन्होंने लिए और ख़ासतौर पर पावर प्ले में उन्होंने बिल्कुल मुखालिफ टीम को खुल खेलने का मौका नहीं दिया। ज़ियाउल हक विकेट हासिल नहीं कर सके और मोहम्मद इलियास ने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। सलमान अली आगा और उमर, जो 2 स्पिनर हैं, फिंगर स्पिनर, उनने 4 ओवर्स में मिलकर 44 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम की। सदर्न पंजाब को आज बैटिंग दी गई। 193 बनाए 5 खिलाड़ियों पे। तैयब ने एक और शानदार इनिंग खेली 78 की 48 गेंदों पर। आजम खान के क्विक फायर 25-13 पर और आमिर यामीन ने भी अच्छे 13 गेंदों पर 24 बनाए। उसके जवाब में नबी गुल 54, कामरान गुलाम 46, इफ्तिखार नॉट आउट 33, लेकिन फिर भी शॉर्ट रहे 11 रन से। ये आप देख सकते हैं नॉर्दर्न के पॉइंट्स 12 हैं, वो पहले नंबर पर हैं। केपी की टीम अब तीसरे नंबर पर आ गई है और इनकी जो नेट रन रेट है वो ज़रा सा बेहतर है सिंध से, लेकिन पहले से वो कम हुई है। सेंट्रल पंजाब का नंबर दूसरा है, जिन्हें अब बलूचिस्तान से मुकाबला करना है और बलूचिस्तान की टीम को अभी भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनके 2 मैचेस बाकी हैं। तो मैन ऑफ द मैच का फैसला होने को है, लेकिन उससे पहले होगा एक वक्फा।
इनामी तकरीब में खुशामदीद। आज 27वां मैच खेला गया ATF सदर्न पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, जो कि सदर पंजाब ने जीता है 11 रन से। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मोहम्मद अब्दुल्ला शेख का, जो कि होमेज अप्लायंसेस की जानिब से यहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया आपकी शमूलियत का। अब मैं बुलाना चाहूँगी मोहम्मद इलियास को, जो कि होमेज अप्लायंसेस मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर हैं। 2 विकेटें हासिल की इन्होंने 37 रन दे के अपने 4 ओवर के कोटे में। ज़बरदस्त बॉलिंग, शुक्रिया आपका। अब बारी है आज पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच की, जो कि हैं तैयब ताहिर। उन्होंने आज 48 स्कोर किए, 78 स्कोर किए, 78। पहले ब्राइटो फैन ऑफ द मैच बॉल साइन करेंगे, उसके बाद अपनी पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी वसूल करेंगे और साथ 25,000 का चेक। भैया अब आपसे थोड़ी बात करेंगे। ज़बरदस्त इनिंग्स थी आज आपकी। जब गए थे मुश्किल था कि टारगेट सेट करने जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग थे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि सेकंड टाइम मैन ऑफ द मैच हुआ हूँ। तो स्टार्ट में यही प्लान था कि कोच ने बोला था कि पहले जाके देखो, एक 2 ओवर देखो, तो जो भी आपको लगता है फिर उस सिचुएशन के साथ खेलो आप। तो बॉल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि थोड़ा सा वो स्टिक हो रहा था विकेट पे ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद फिर उसका फ़ायदा उठाया। अच्छा, आपका थोड़ा सा स्टांस डिफरेंट है, रिश्ती प्लेयर हैं, किसी स्पेशल प्लेयर को फॉलो करते हैं? प्लेयर्स तो काफ़ी लाइक करता हूँ, लेकिन किसी को फॉलो नहीं करता बैटिंग में। चलें, ऑल द बेस्ट आगे। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूँगी खैबर पख्तूनख्वा के कैप्टन इफ्तिखार अहमद को। इफ्तिखार, आपने टॉस जीत के बॉलिंग की थी, क्या प्लान दिया था बॉलर्स को? बॉलर को सिंपल प्लान दिया था कि विकेट बॉलिंग किया करो, मगर थोड़ा बाहर बॉलिंग की है। और क्योंकि विकेट थोड़ा अच्छा था, जितने मैचेस हो गए आज के मेरे ख्याल में थोड़ा अच्छा था विकेट, तो बल्ले पे बॉल आ रहा था। आपको लगा थोड़े से स्पिनर्स भी आज उस तरह नहीं डिलीवर कर पाए आपके? जी बिल्कुल, मैंने जो मास खान था और यंग स्पिनर है उनको खिलाया था, 3-4 और यंग को खिलाया था। तो हम देख रहे हैं कि हमें आगे के मैचेस के लिए प्लेयर मिले, ताकि सेमीफाइनल फाइनल में हमें कोई अच्छा प्लेयर मिले। बैटिंग में अगर मैं बात करूं कि लगता है कि मिस किया ट्रिक, अगर आप खुद ऊपर आ जाते क्योंकि अच्छी फॉर्म थी? वही बात है कि हम यंगस्टर को देख रहे थे, क्योंकि अगले मैचेस के लिए सेमीफाइनल फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है, तो उनके लिए देख रहे थे। चलें, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी आमिर यामीन को, जो कि आज के विनिंग कैप्टन ATF सदर्न पंजाब के। आमिर, बड़ा ज़बरदस्त मैच जीते आज। आपके बैटर्स का पहले ही ओवर से डिफरेंट रोल था, आज कोई ख़ास स्ट्रेटजी थी? जी बिल्कुल, देखें जी, जिस तरह की ताहिर तैयब ने इनिंग्स के लिए बहुत अच्छा उसने स्टार्ट लिया और जैसे उसने अच्छा फिनिश किया, 76 रन उसने किए, बड़ा अच्छा था। और बाकी बाद में आज़म ने और मैंने जो मतलब अच्छा फिनिश किया, जो एक अच्छा टोटल हमने सेट किया, उसके बाद बहुत अच्छा डिफेंड किया बॉलर्स। इस टूर्नामेंट से अभी क्या पिक किया है पॉजिटिव आपने? जी बिल्कुल, यही है कि शुरू में बस हम थोड़ा सा अनलकी रहे हैं, 6 मैच कंटिन्यू हार गए हैं। बाकी हमने अच्छा कम बैक किया, लाहौर आके हमने 3 मैच जीते हैं 4 में से। बाकी देखें, इट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट, आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। बाकी ये है कि अब ये है कि सीज़न के लिए इंशाल्लाह तैयार और आगे ना कोशिश करेंगे 4 डे अच्छा खेलें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इनामी तकरीब से इतना ही, अब चलते हैं वापस कमेंटेटर्स के पास। जी हाँ, और अब ये आज शाम का अगला मुकाबला होना है बलूचिस्तान और होम सिटीज सेंट्रल पंजाब की टीमों के माबैन। 7:15 से आप इससे बराह रास्त देखिएगा लाहौर से। तो अभी के लिए इतना ही, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।